Secondly, in which language are you guys comfortable with, Hindi or English? You can just let me know, like type in the comment, whichever would be the more, we will try to stick in that language. Okay, English, Hindi plus English. Okay, both works. English, both. Okay. English, English. Okay, so I think most English, both. Okay, so I think half the people have joined from, I think, this South India part, and half have from North India. Okay. Okay, so like we will try to stick with both the both ones, so that we are comfortable with everything. Okay. So I'm just switching to the slideshow, and I think it is visible now. Just a moment, I will just pick up the pen as well, so that I may need to explain something. So I'm just switching on the pen, so as to write on the screen. I just forgot it. Just a moment. Okay. So let's start. Okay, so hello and welcome, guys. About the would be held responsible for any kind of losses arising from the information provided herein. And however, if you happen to make any profits, you may praise and recommend our services to other guys. So with that out of the way, let's start with the things: introduction and technicals. The first one is introduction. Let's see. First of all, let's see the potential in the stock market. Like I'm not able to see the comments right now. Uh, I'll just try to go a little bit fast. And for the first half, we will try to let's see. Like if you have any questions, you can just keep typing in the comments, and at the end, I will answer all of them, provided we have the time. Otherwise, you can also ping me on Instagram or YouTube, wherever you feel like, if you have any other doubts. Okay. So let's see the potential in the stock market. Like, see, the first one is Mr. Mala. He's no longer with us, and he used to be like about 45,000 crores net worth person. So, right, Rakesh Junjunwala, he invests from his company Rare Enterprises, which was founded by him and his wife, and the initials of his name were taken RA, Rakesh, and his wife Rekha, RE, Rekha. So that is how he came up with the name Rare Enterprises, and he built a portfolio of about 40,000 crores in the stock market. And he is no longer with us, but I think if we can have a very good वी कैन सी अ वेरी गुड पोटेंशियल इन द मार्केट. लाइक इतना पैसा मार्केट से डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि इन्होंने भी बनाया है, एंड अराउंड 35 to 40% के CAGR पे इन्होंने इसको अचीव किया था. एंड ये एज यू कैन सी, जब पैसा ज्यादा होता है तो विस्की की बोतल भी ज्यादा होती हैं. तो यू कैन सी देयर आर 5 bottles इन फ्रंट ऑफ देम. अभी हमारे पास जैसे एक या दो होंगी, तो मे बी इफ वी कैन गो फॉर thousands of crore, maybe we will have also have 5 to 6 bottles. Okay. The second one is Mr. Peter Lynch. He was the fund manager at Magellan Fund from 1977 to 1990. And in those 13 years, he gave an average compounded return of about 29%, which is best the fund manager has given so far all over the world. And to give you an idea, when he joined the fund size was $18 million. And when he the fund size was $400 million. Right, so you can see from 18 million to 400 million. That was the power of compounding, and that is how you can also grow your money. So power of compounding is a very rich thing in stock market. The third one is Radhakishan Damani. So Radhakishan Damani is a value investor, and he has founded the Avenue Supermarts, which is the parent company of D-Mart. And ही इज ऑल्सो वैल्यू पिकर, एंड काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स इन्होंने भी पिक किए हैं. हिज नेटवर्थ इज अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीज. सो लाइक आप उसमें जीरो भी गिनते रह जाओ कितनी है, अराउंड 12 या 13 zeros उसके अंदर होती है. सो एज वी यूजुअली से दैट वर्क हार्ड अंटिल योर बैंक अकाउंट लुक्स लाइक योर फोन नंबर, सो समथिंग लाइक दैट. तो इस तरीके के सिनेरियोज स्टॉक मार्केट में एक रियलिटी है.
तो आज हम उन्हीं को जानने का ट्राई करेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर चीजें बन सकती है। आई विल ऑल्सो टेल यू लाइक मैंने किस तरीके से जर्नी शुरू करी थी एंड अभी हाउ आई अचीव माई फर्स्ट 1 CR एंड हाउ आई एम गोइंग फॉरवर्ड। तो जैसे आजकल आप देख रहे होगे स्टॉक मार्केट में काफी स्कैम्स वगैरह भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, सो वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि किस तरीके से आप उनसे बच सकते हैं एंड वेरीफाइड पैनल एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। एंड द लास्ट वन इज मिस्टर वॉरेन बफेट। ये सबको ही पता होगा, CEO ऑफ बर्कशायर हैथवे and with a net worth of more than $100 billion. Recently his partner Charlie Munger has died at the age of 99, so बस एक साल रह गया था उनकी सेंचुरी को, but I think Warren Buffett may be doing the century in 2030 he would be 100 years old, so let's hope कि ये अचीव कर पाते हैं। 100 बिलियन तो इन्होंने अचीव कर लिया है, $100 billion, so मे बी 100 की एज भी ये अचीव कर पाए, right? So again let's see some potentials in the stock market कि किस तरीके से money compounds, right? As you can see the Titan which is the flagship stock of Rakesh Jhunjhunwala, so जब उन्होंने buy किया था तो ₹3 के ऊपर उसने buy किया था and till now it has given around 86,000% returns, or you can say 870 times the money has grown. And he at that time invested 18 crores at ₹3. So you can see the power of compounding, and you will say like it's very easy, but who to hold a stock over a period of 20 years, I think it is one of the most difficult tasks, because you would have to see multiple recessions, multiple government changes, and also whenever your money grows 2 or 3 times, then you tend to exit, like me myself, like when I bought Adani back in 2020, so it was trading at around 250 rupees Adani Gas, and I exited at 350. So like it's very difficult to hold on to the stock, and then it went up to till 4,000. So you can see that I have also like made some mistakes, and we keep growing out of that. Okay, recently also Sky Gold, as you can see, like we will see, as you can see, Sky Gold, it was listed at around 224 rupees. In just 1 year it went up to 1200. Right now it is trading at around 1000 rupees. So this is the live chart, and I'll just tell you I have personally invested in Sky Gold as well at 1000 rupees, like. And earlier I bought it at around 400, then I sold at around 600. As you can see, there's a breakout range at 400. I tell you like all these technicals how we entered into it, and even after selling at 600, why I decided to enter at 1000 rupees as well. So and my target for this is around 1500 right now. Like we will see in the coming slides how you can also make the same money, right? And the next one is REC. As you can see, like from 125 rupees in just 1 year it went up to 434 rupees. So that's a very big potential. You can see 4x times the money has grown. ओके, तो 4 गुना यहाँ पे आपका अगर पैसा हो रहा है, तो इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन द स्टॉक मार्केट कि आप एक एक्सेप्शनल रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं बाकी एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में। इफ यू विल लुक कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, या मे बी इन रियल एस्टेट, और मे बी लाइक क्रिप्टो करेंसीज इज अनदर वे, बट आई थिंक दैट इज वे मच volatile for investors like us. I mean, I personally don't trade in bitcoins and other cryptocurrencies, but I think this is the volatility that I can handle, at least in the stock market. And the entry barriers are also very low. Like you just need to open a demat account, and maybe you can just start trading with that, right? So that is how you can switch into the stock market. For the real estate, I think you would be requiring a very large capital in the CRs. Like there's an entry barrier, so it is one of the very best field to enter into the stock market. Okay. So I think some of you may have heard about the rice and chessboard problem. If you have not heard, let me just tell you. Like, let's say if you place a rice on the first chessboard block, and I ask you to place double the amount of rice on each consecutive block. So let's say on first one there is one rice, on second there is two, on third there is four, and so on. So how many rice would you think would be there on the last chessboard block? Like you can just type in the comments so that we will know like how many rice would be there on the last chessboard block. Okay, can you just type in the comments, like maybe I can see how many rice would be there on the last chessboard block. 2 to the power 64. Okay, one answer. 2 to the power 64. 2 to the power 63. 64. Okay, yeah, it would be 2 to the power 63, because the first one is 2 to the power 0. Okay, so yeah, 2 to the power 63 is the correct answer. So as you can see, this is the power of compounding. I will just let you know in the next slide how this is
how this is related to the investing thing. Like, let's say your father invested when you were born at around 1996, 1997. So he had just 1 rupees in his portfolio, right? He just came into the stock market with just 1 rupees, and then he kept on doubling each year. So by the time he reaches at your age, like, you would be immensely wealthy, like if you keep on doubling your money each year. And it's perfectly possible in the stock market. I personally have done it in the past 2 years. Okay, it's one of the very practical thing. It would take time, it would take effort, but it is very much achievable. And given the kind of conditions the market has presented after corona, so like there will always be a turning point in a trader's life. And like, if you see in the Rakesh Juniwala portfolio, there is only one stock, that is Titan, which has given so far this kind of return. Others have given the same return, but he was not invested that heavily into it. So you just need to be right 4 or 5 times in your whole life with a big amount, right? If you are like is I think somebody voice is coming. If you want to say anything, like, you can just type in. Okay. So you just need to be right 4 or 5 times in your whole life, and just invest a big amount, like not the small amount. Like, for example, if you are investing something, for example, 1 lakh rupees, and it grows 10 times over the period of 10 years. So like, it would just amount to 10 lakhs in 10 years. But if you invest 1 crore and then it compounds to 10 cr, then that is the difference here. So you need to be investing big to make big money, right? Like, let me see, just somebody wants to say something. Okay, 2 to the power 64, 2 to the power 63. I think no other comments are there. Okay, just we'll go back to the slide. And okay, so as you can see, money is basically a game of doubles. How frequently are you able to generate the double the amount of your own money? So 12 doubles will be equal to 2 to the power 12, and you can just estimate the amount of money. And this is how the power of compounding works. As you can see in the case of Warren Buffett, for the first 40 to 50 years, his wealth was just nothing as compared to what he has earned right now. It is up till the age 87, because this slide I made around 3 to 4 years back, but I think it is still relevant. Okay, as you can see, the in compounding, nothing happens for a good period of time, and then suddenly your wealth starts to grow up. In my case, also from 2017 to 2020, I was making nothing. Okay, I was just learning and losing the money, and after that, it just went up to like in the CRs. Earlier, I was just there in the thousands or something, and then because will be a turning point in your career as well, in your trading career. This one was the Corona career. In Corona, there was very free money lying around, and ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरे लिए ही वो फ्री का पैसा था, आप सभी के लिए था, सभी के पास अपॉर्चुनिटी थी। और मार्केट अगले इस डेकेड में भी हो सकता है 2026 27 या किसी एक टाइम पे एक और बार आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करे। बट अगर आप उस टाइम पे रेडी रहोगे, तो यू विल ऑल्सो सी अ ब्रेकआउट इन योर पोर्टफोलियो। एंड ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में देखा था। तो मनी, लाइक योर वेल्थ विल जस्ट शूट अप इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। एंड एक बार जब पैसा आ जाता है, यू बिकम द वेरी चेंज मैन। आप उस तरीके से मार्केट को या लाइफ को उस तरीके से फिर देखते नहीं हो एक बार पैसा आने के बाद। तो लाइक यू ऑल्सो शुड बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट मार्केट हैज टू प्रेजेंट। अब क्या है, मार्केट काफी ऊपर आ चुकी है, तो यू शुड वेट एंड वॉच कि भाई किस तरीके से market will present you with another good opportunity in the coming years, or rather usse pehle you can filter out some very good stocks based on the technicals that we are going to be discussing. I think काफी लोगों को already पता होंगे, but I'm just reiterating the facts because in this lecture we are going to be concerned about only the introduction and technicals, because I cannot like talking about the derivatives and the options and futures is beyond the scope of this lecture. Maybe sometime later we can talk about those things, how to trade futures options. Like, I do trade futures and options, and we'll just see maybe later if we are able to talk about it. Otherwise, you can just like okay, I'll just tell you later. Okay, so let's first discuss what are stocks. Okay, we are discussing what is the stock market. So let's imagine a hypothetical person named Mukesh Ambani, जो कि मुंबई में अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग कंपनी का। एंड ही नेम्स हिज कंपनी RECC, दैट इज रिलायंस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग कंपनी। ओके, so what happens is he happens to make a profit of rupees 10 lakhs in the first year in Mumbai.
and then he decides ki he needs to expand into the other cities, and he sits down and does some calculations that he need another 60 lakhs to grow his business into the other cities, for example, Goa, Pune, etc. Okay, so he thinks how should he be looking for the uh, like how he should be raising the money. So there he comes with the three avenues. Either he can go to a bank for a loan. Okay, bank will give him loan on interest, or he can issue corporate bonds of his company at a coupon rate which would be more than the FD rate, around 8 to 10% per year, or he can issue shares of his own company and ask the public for the money. Okay, so then he decides कि हम लोगों से पैसा लेंगे. ओके, एंड ही इज वेरी हैप्पी कि हम पैसा तो हम लूट ही रहे हैं, तो अब आईपीओ के थ्रू वी विल आस्क द जनरल पब्लिक फॉर द मनी. ओके, सो व्हाट ही डज इज ही गोज टू एन अंडरराइटर. एक अंडरराइटर के पास जाता है. हु इज एन अंडरराइटर? अंडरराइटर इज अ पर्सन हु वैल्यूज द कंपनी. ओके, एक सीए की तरह होता है जो कि कंपनी को वैल्यू करता है बिफोर मेकिंग इट पब्लिक. Okay, and the underwriter goes and values the company RECC at rupees 2 crores. So Mukesh Ambani decides कि he should be selling 40% of his company, that is 40% of 2 crores, that is 80 lakhs. So this way he can raise 80 lakhs money. And उसने पहले क्या डिसाइड किया था कि 80 lakhs की बजाय उसको 60 lakhs ही चाहिए थे. So he also has another 20 lakhs so that he can use it in the other operations. Okay, so this is how the company goes public, and the IPO is launched. As you can see, there are many IPOs coming and many blockbuster IPOs are coming. Okay, so IPO, the full form is initial public offering. That is the first time you are offering your money, like you are first time offering your shares to the general public. Okay, and if any of your friends or any of your relatives also want to list their company on NSE emerge or NSE small mid cap, so I can also help you in that as well. We also offer the services of IPO listing on the SME. So if any of your like, the requirement for it would be like minimum 3 crores in assets and the last 3 years should be profitable. So that is how there are certain requirements set by guidelines set by SEBI before making an IPO. Okay, so Reliance was, I'm just taking a hypothetical example because in that it was only for the 1 year, but you would be required minimum 3 years before listing it on the stock exchange. Okay. So IPO of RACC, which is of worth rupees 80 lakhs, comes at rupees 40 per share. This rupees rate of 40 per share is decided by the company management and the underwriter combined. Okay, so they decide that 40 rupees ka price rakhte hain, it would look very affordable to the general public, and so accordingly they decide ki 40 into 2 lakh, the 2 lakh number of shares will be floated in the market, because 2 lakh into 40 is 80 lakhs, and that is how the company will be raising the money, and people will subscribe to the IPO in lot sizes. Okay, you cannot just buy one share, two shares, 69 share, 96 share. Okay, you have to buy in a lot size. It would be a fixed lot size before the IPO. You would be given a 2 or 3 day window जिसके अंदर की you will be investing the money. Okay, and after that the company is then listed on the stock exchange. Okay, so let's say the listing price of Reliance is 60 rupees, because Ambani hai to thoda premium pe list hoega hi, and then the profit is 20 rupees per share because IPO came at 40 rupees per share and listing price is 60 rupees per share, so 20 rupees ka profit per share, and then the shares are traded on the stock exchange on both BSE and NSE. Okay, so there were total 23 stock exchanges in India back in the days. So these were regional stock exchanges, but right now there are only two stock exchanges, BSE and NSE. If you can also count the MCX, but that is uh, for the commodities. Okay, so there are two kinds of stock exchange, BSE and NSE. So BSE was started in the year 1875. So 1875 में the first company to get listed on BSE was the Dutch East India Company. ओके, काफी लोगों को ऐसा लगता है कई बार कि टाटा शायद पहली कंपनी थी जो लिस्ट हुई थी, जब मैं बाकी सेमिनार्स में पूछता हूँ, बट इट वाज एक्चुअली द डच ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा इंटरेक्टिव कम ही रहता है ऑनलाइन वाली वर्कशॉप्स में, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट पिकिंग अप अ लिटिल बिट ऑफ पेस. लाइक अगर आपको थोड़ा स्लो चलना है तो यू कैन जस्ट टाइप इन द कमेंट्स इफ यू थिंक दैट मे बी वी शुड बी गोइंग अ लिटिल बिट स्लोअर, अगर थोड़ा ग्रास्प करने में दिक्कत हो रही है. I think there may be some issues. Okay, you can just let me know in the comments if the pace is right or not. Okay, perfect speed. Tanya Gandhi, thanks. You can just let me know if you are running too fast or too slow. Okay, Manish Meena, we are perfect.
Okay, so I think we will take 2 as the golden only. Okay, so let's just switch back to the slides, and we will start from current side. Okay, so there are two stock exchanges, BSE and NSE. The first company listed on BSE was the Dutch East India Company in 1875, and NSE was started in the year 1992. And in somebody is saying something. Is there any question? Like you can just ask. Okay, so we'll just switch back to the slide. Okay, starting, and NSE was started in the year 1992. Okay, which is the National Stock Exchange. BSE is Bombay Stock Exchange. If you have heard about Harshad Mehta, BSE का बच्चन in 1992. Okay, so जो भी कोई स्कैम होता है, एक तो एसीसी कंपनी में होता है. इफ यू विल लुक कि अभी अदानी ने भी जब एसीसी बाय किया था तो उसमें भी हाइडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें भी एसीसी इन्वॉल्व था हर्षद मेहता वाले. Okay, so it is one free tip from my side. And NSE is the first dematerialized stock exchange in India, right? In 1995 it came up with the index, like we will just talk about that. Like, what do you mean by dematerialization of the share? It means to make them in the electronic form. पहले क्या होता था इन बिफोर 1992, जैसे आपने वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट देखी होगी, वन ऑफ द फेवरेट मूवीज. तो उसमें अगर आप देखोगे कि वेन एवर देर वन यूज टू बाय द शेयर, देयर इज अ शेयर सर्टिफिकेट, उसको वो रोल करके फिर एक पाइप के थ्रू उसको ट्रांसफर करते थे, राइट. ये मैं अगर थोड़ा लाइव एक्सप्लेन करता तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता, बट आई थिंक दिस यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट. पहले शेयर सर्टिफिकेट होते थे फिजिकल कॉपीज में. सो राइट नाउ आप कई जगह देखते हो कि फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट कीजिए ऑनलाइन में, तो दैट मीन्स इट इज द डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स. सो एनएससी वाज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज which came up with a dematerialization in India. Okay, so let's discuss a bit about market structure. Okay, so money flows from the surplus to the deficit side. जिनके पास पैसा होता है और जिनको जरूरत होती है उनके पास पैसा जाता है. ओके, नॉट इन रियल लाइफ बट जनरली ऐसा बोला जाता है कि बैंक्स वैसे पैसा उनको देता है जिनको जरूरत नहीं होती है, राइट. बट जनरली देना इसको चाहिए. ओके, so there are two kinds of finances, indirect and direct finance. Indirect finance means that the banks, the financial intermediaries, you give your money to the bank and they will transfer the money to the other side where there is a requirement. The other side is a direct finance. You directly give your money into the financial markets. Okay, for example, in the IPOs, or for example, while investing in the VC or the startups, that is the direct finance. आज हम सिर्फ direct finance के बारे में बात करेंगे, not about how the banks works and all the other thing. So there are two kinds of market in the direct finance. The first one is primary market, and the second one is secondary market. In the primary market, the first one comes, which is the IPO, where the initial public offering, you give your money to the company and it gets listed on the stock exchange. तो कंपनी को पैसा मिल जाता है, आपको शेयर्स मिल जाते हैं, राइट. सो लाइक, एंड एक और टिप मेरी तरफ से ये रहेगी कि आईपीओस में जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो एंड किसी आईपीओ की हाइप बहुत ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल जोमेटो की होगी, पेटीएम की, नाइका की, एंड ऑल दी शेयर्स, तो उनमें आप थोड़ा इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचिए. मतलब आपको लगेगा कि आप बहुत एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, बट जनरली जो बहुत ज्यादा प्राइस से आईपीओस होते हैं या फिर बहुत ज्यादा जिनको मतलब जिनका आप सर्च भी नहीं करते लेकिन आपके पास न्यूज आ जाती है कि हाँ इस चीज का आईपीओ आ रहा है, तो उसमें बिल्कुल मत लगाइए. फॉर एग्जांपल, जैसे पहले एक बार रिलायंस का भी आईपीओ आया था 2007 में, अनिल अंबानी की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो मुकेश अंबानी का नहीं था. अनिल अंबानी ने एक आईपीओ लेके आया था. उस टाइम पे काफी सारे डीमैट्स अकाउंट सिर्फ इसलिए लेते क्योंकि रिलायंस का आईपीओ आ रहा था, एंड उसने कभी अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं. एंड सेकेंडली, कोल इंडिया का भी 2011 में इतना बड़ा आईपीओ आया था. सिमिलरली अभी पेटीएम का भी आईपीओ आया था. तो काफी मेरे दोस्तों ने भी पेटीएम में लगाए थे पैसे, तो मैंने नहीं लगाए थे. तो लेकिन आप आसपास देखोगे काफी लोग जस्टिफाई करते रहते हैं, पेटीएम ने ये करा है वो करा है. लेकिन जब किसी चीज की एक वैल्यू होती है उसको भी देखना चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करते हुए, राइट. तो आप उसमें देखिए जिस पे भी आपको बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है बेवजह की, तो उसमें आप इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा बचिए, राइट. क्योंकि उसमें आप डेफिनेटली पैसा लूज करने वाले हैं, बिकॉज अदर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और द वीसीज विल गोइंग टू एग्जिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, the second one is FPO, that is the follow-on public offering. When second time the company issues its shares to the general public, that is called the FPO, follow-on public offering. Okay.
Third one is private placement. In the private placement, the number of investors investing in a company is less than 200. अगर 200 से कम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके, सो समटाइम्स कंपनीज थिंक कि भाई हम ज्यादा लोगों से पैसा नहीं लेंगे, हम सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को बुलाते हैं, जैसे कि आशीष कचोलिया, राकेश झुंझुनवाला या राधा किशन दमानी. सिर्फ 4-5 लोगों से हम पैसा इकट्ठा करेंगे क्योंकि दे हैव द आई टू सी कि क्या फ्यूचर होल्ड करता है. कि अब काफी लोगों को इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं होती है, तो काफी कंपनीज डिसाइड की प्राइवेट प्लेसमेंट में बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, राइट. Fourth one is rights issue or the bonus issue. In bonus issue, sometimes the listed company gives bonus to the shareholders. For example, आपने कोई रिलायंस के शेयर्स खरीद रखे हैं तो अंबानी को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, सो ही डिसाइड्स कि कंपनी को कुछ बोनस देना चाहिए, सो ही गिव्स सम बोनस शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स एट फ्री प्राइस, राइट. तो कंपनी जब प्रॉफिटेबल होती है तो इट गिव्स आउट डिविडेंड्स, द बोनस इश्यूज और द अदर थिंग्स. सो इट्स वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स अबाउट द कंपनी. ओके, last one is OFS, that is offer for sale. When some big investor try to exit the company, he issues his shares in the market, and agar kisi ko, if anyone wants to apply for it, so they can just buy the shares. Okay, so recently in the case of CCD, when Vijay Siddhartha's like before Vijay Siddhartha sold his stake in I think Mindtree. Okay, I don't remember the name. Siddhartha से पहले क्या था? So, but he sold through offer for sale in back in 2020. And abhi right now Standard Life has also exited from HDFC Life Insurance. So that was also an offer for sale. So you can just find out all these things. Offer for sale is a very common thing, and you can also subscribe to them provided you have the good money to invest in them. So these are very good opportunities sometimes in the market. Okay. And then comes the secondary market, the OTC trades, over the counter trades, which means they are not happening on the stock exchanges. For example, in OTC trades, you can buy the shares of Chennai Super Kings, the IPL team, or HDB Financials, which is a subsidiary of HDFC Bank. Or before the listing of Geo Financial Services, it was also trading in the OTC counter. So OTC counter में भी ट्रेड करने के लिए आपके पास थोड़े थोड़े अगर कनेक्शन होंगे तो you can just buy the shares at a discount. Trades I won't recommend. Kya market means the NSE and the BSE, buying the shares electronically, online only. So यहाँ पे there are many more participants and the price discovery is very good. In the OTC counter, you would not have the good idea, at least at this level. I also don't have much idea on how to figure out कि भाई चेन्नई सुपर किंग के शेयर लेने हैं तो उसका एक्चुअल में उसको वैल्यू कैसे करें, राइट. एंड ओटीसी में अब चेन्नई सुपर किंग के शेयर्स भी गिर गए हैं क्योंकि अब MS धोनी उसमें रहा नहीं है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस चीज का पोटेंशियल किस तरीके से है. सो यू कैन जस्ट फिगर इट आउट. ओके, and then comes the clearing and settlement. Clearing and settlement, I think it's not useful. Yeah, exchange clearing and settlement is done by the entities like CDS and all these things. So usme I think it's not worth like talking about these things. Clearing and settlement is not our thing. Okay, then comes the stock indices. Stock indices is Sensex and Nifty. I think you may have heard about Sensex and Nifty. Many of you may be trading, but since we are taking the from the basics level, so I'm going to explain about Sensex and Nifty. So basically, Sensex and Nifty are the barometer of the stock market. Okay, it measures the mood of the market. If you look, Sensex is right now trading above 70,000, and Nifty is trading about 21,000. It is nearing to 22,000. Okay, so BSC was like BSC came up with an index called Sensex, which is the sensitivity index, which means it comprises of the top 30 companies by market capitalization. What do you mean by market cap? For example, just as we discussed, कि Reliance ने 80 lakhs raise किए थे in our previous example, Reliance Electric car charging company. So that 80 lakhs was the market cap of Reliance, and वो कैसे निकली? Number of shares into the price of each share. So number of shares were 2 lakh and price of each share was 40 rupees. So N into P is the market cap. So here, up top 30 companies, for example, Asian Paints, Reliance, HDFC Bank, TCS, Infosys, ICICI Bank, and all the other 30 companies which are like the largest,
by the market cap are taken, and that average weightage is given to all of them, and then the price of sensitivity index is calculated. So it was set at base value of rupees 100 in the year 1970 at 79, and from 100 rupees it has now traded at 71,000 rupees. So 71,000 in about how many years? I think 20, 40, 43, 44. Okay, so around 43 to 44 years mein, it has given around 710% return, 710x return. Okay. Yeah, 710x return. Okay. So that is the potential in the stock market, as you can see. And given that this is the Indian decade, so it will like going to be near 1 lakh soon. Okay. So आपको भी उस तरीके से invest करना पड़ेगा कि whenever the stocks are beaten down, and you have to just buy them, because mutual fund inflows are also coming in. Reliance is also entering the mutual fund party now. So I think all this in जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होंगे उनको बस खरीदना रहता है, तो कुछ ना कुछ खरीद के मार्केट को एक बार ऊपर तो लेके जाएंगे ही. तो यू शुड ऑल्सो बी बाइंग until the euphoria is there, until the party does not stop. So I think it is a very good opportunity कि आपको भी इसमें पैसा बनाने का मौका मिल सकता है. Right. So similarly, as you can see कि 1977, 78 में BSE Sensex लिया है, तो NSE also thought कि हम क्यों पीछे रहे. So they came up with Nifty. And since उन्होंने सोचा कि 30 कंपनीज हम सेम कॉपी तो नहीं कर सकते, तो they came up with 50 कंपनीज by market cap, and it is called the National 50. So the base year was set at 1995, and the base value was set at 1,000 rupees. Okay, and right now Nifty is trading at 21,000. So that is how stock indices are calculated. कि इसके अंदर आप companies का data, इसके अंदर you can just fill in the data, and you will arrive at the numbers. So Nifty and Sensex are also traded in the derivative segment. उसमें आप options and futures में आप trade कर सकते हो. But we will discuss that some other time. Okay. On key how to trade the Nifty and other things. Okay. So, but the thing is that these stock indices are not actually the true barometer of the stock market, because the first 8 to 10 companies of Sensex comprise of more than 50% weightage of Sensex. So, अगर किसी को market को ऊपर लेके जाना है, तो वो सिर्फ top 8 या 10 stocks को ही ऊपर लेके जाएगा, and बाकी stocks को नीचे he can just sell it. So आपको लग गया कि मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन आपका पोर्टफोलियो में क्यों लॉस हो रहा है. तो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज market is not always the true barometer, and in fact in S&P 500 as well, or the Nasdaq 100, so these also are rolling to highs, but the most of the stocks are actually beaten down, because the top companies, for example Apple, Microsoft, Google and Netflix, these are rolling high, or the Nvidia as well. Nvidia का भी 25% एक ही झटके में उन्होंने गैप अप ओपन किया था लास्ट ईयर, तो उसकी वजह से भी काफी अच्छा AI की वजह से एक मार्केट में मूव आया था. लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर एक्चुअली बीटन डाउन. सो यू कैन जस्ट सी द BSE 200 और 500 फॉर अ बेटर मेजर ऑफ द स्टॉक मार्केट, बिकॉज इट विल गिव अ बिगर पिक्चर. राइट, ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ 2-4 स्टॉक्स के बेसिस पे मार्केट का मूड जज कर सकते हो. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा एक बिगर पिक्चर को भी माइंड में लेके चलो कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है. सो दैट्स व्हाई BSE 200 और 500 आर अ बेटर मेजर टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. ओके, जब वो अपने लोज पे होंगे, एंड व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ रिवर्सल और W पैटर्न एट द लोअर लेवल्स, देन यू कैन आई थिंक बाय देम. राइट. So let's move forward. So market timings, if you don't know कि market किस time start होते हैं, just let you know कि at 9 a.m. the market starts. From 9 to 9:08 there is like a order matching system. You can just place your orders, your bids, your offer 9:08. From 9:08 to 9:15 there is a cool off period and the order matching system कि जिससे कि आपका opening price determined हो जाएगा by 9:08. Okay, and from 9:15 the trades occur continuously. It's just like a fish market. आपको काफी recommendations आते रहेंगे कि इस स्टॉक को बाय कर लो, उसको बेच दो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन आपको चक्रों में पड़ना नहीं है ज्यादा. ठीक है, वरना you will be losing the money in the market. Okay, you just need to be cool headed. कुछ एक setup को follow करना है. We'll talk about setups and all these things कि किस तरीके से आप like it's basically a game of psychology. Okay, since we are not discussing psychology right now, like you can just go through our YouTube videos as well to develop the psychology, because psychology is very much important at this point of time. Okay, ट्रेड्स तो आप कर लोगे. देखो, जब मैं शुरू किया था तो मेरे को 2 साल 1 रुपया नहीं बना था. ओके, इट टेक्स टाइम. राइट, अभी since I'm teaching you, and also you can be looking here and there in the YouTube channels as well.
तो काफ़ी जगह आप देखोगे, चीज़ों को सीखोगे, तो योर लर्निंग कर्व वुड नॉट बी लाइक 2 इयर्स, इट विल बी लाइक 8 टू 10 मंथ्स। लेकिन आफ्टर 8 टू 10 मंथ्स आपका साइकोलॉजी डेवलप होगा या नहीं, ये आई डोंट नो, इट विल टेक टाइम, ओके? तो बस मार्केट में ज़्यादा लालच के साथ मत आना कि आज आते ही पैसा बन जाएगा, इट विल टेक टाइम। बट लेकिन शुरू के 3 साल मान लो कुछ पैसा नहीं बना, लेकिन अगले 3 साल आपके पिछले 3 साल भी कवर कर देगा, ये वाले 3 साल भी और आने वाले 3 साल भी कवर कर लेगा। तो ऐसा टर्निंग पॉइंट डेफ़िनेटली आपके साथ भी मार्केट में आएगा, प्रोवाइडेड कि आप उसमें लगे रहो, सारी चीज़ आप देखो, सीखो, ओके? सीखना बहुत ज़रूरी है, ओके? सो लेट्स प्रोसीड विद द लर्निंग, ओके? फ्रॉम 3:30 to 4 PM, the trades, market trades at the closing price if buyers and sellers are available, okay? वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस प्रोफेशन, सैटरडे एंड संडे आर हॉलीडेज, ओके? मेरे स्कूल में भी सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, कॉलेज में सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, एंड अब भी सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर मी, क्योंकि लाइक यू कैन जस्ट स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हम जॉब में इतना खो जाते हैं कि इधर उधर ज़्यादा टाइम देते नहीं है। तो मार्केट की एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, एंड सबसे बेस्ट चीज़ की बस 9 से 3 ही काम होता है, ओके? बाकी टाइम यू आर ऑल फ्री। बाकी टाइम 9 to 5 भी कई बार जॉब करने रहते, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस एटलीस्ट फॉर मी। एंड लाइक खाली टाइम में आई गिव सेमिनार्स एंड ऑल दीज थिंग्स, सो इसमें भी सही टाइम पास इसके अंदर हो जाता है, ओके? सो देन कम्स द नेशनल हॉलीडेज एंड अदर प्री डिफाइंड हॉलीडेज, जो आपको ईयर के स्टार्टिंग में बताई जाती हैं कि अच्छा इन दिन भी छुट्टियां हैं, ओके? इंडिया में छुट्टियों का बहुत वो रहता है, काफ़ी मतलब अपने घूमने का भी रहता है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स अगर आपको इसको परस्यू करना है। बट डू नोट दैट कि 2-3 साल आप पैसों के पीछे ना भागें, लर्निंग के पीछे भागें, ओके? सो लेट्स सी व्हाई डू द प्राइसेस फ्लक्चुएट। जो मार्केट में प्राइस होते हैं, इट्स लाइक चेंज क्यों होते हैं? द फर्स्ट वन इज बेसिकली ड्यू टू द सप्लाई एंड डिमांड, ओके? कि सप्लाई एंड डिमांड किस तरीके से काम कर रही है। लाइक इफ देयर इज डिमांड है किसी स्टॉक की, तो पीपल विल ट्राई एंड बाय, इट विल जस्ट गो अप, ओके? इट्स नॉर्मल इकोनॉमिक्स, नथिंग न्यू, ये सब आपको पता ही है। सेकंड वन इज लाइफ, कि समटाइम लेट्स से द सीईओ ऑफ अ कंपनी डाइज, सो उस तरीके से क्या होगा कि देयर इज अ चेंज इन मैनेजमेंट, ओके? सो पीपल डोंट नो, पीपल आर अफ्रेड कि नहीं क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में कौन सा नया सीईओ आएगा। फॉर एग्जांपल कोटक बैंक में उदय कोटक का क्या था, टेन्योर खत्म हो गया था अभी लास्ट ईयर ही। तो पीपल वर वेरी वरिड कि नहीं, कोटक बैंक अब उदय कोटक के अंडर नहीं है, कोई और आने वाला है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगी। सो दे स्टार्टेड बीटिंग डाउन द स्टॉक्स, तो 2000 के प्राइस से इट केम डाउन टू 1600 समथिंग। सो दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेरी गुड इन द मार्केट। लाइक ऐसा तो नहीं होगा कि कोई नया बंदा आ गया तो कोटक बैंक को बंद ही करा के जाएगा, ओके? इट इज नॉट लाइक दैट, बट समटाइम्स मार्केट रिएक्ट इरैशनली, ओके, टू दीज काइंड ऑफ न्यूज और समथिंग लाइक दैट। सो आपको ऐसे टाइम पे रेडी रहना चाहिए कि जब कोई कंपनी टेम्परेरी प्रॉब्लम में फंस जाती है, सो इट्स शेयर्स आर अवेलेबल एट अ वेरी चीप प्राइसेस, तो आप उसको उस टाइम में बाय कर सकते हो। एंड कोटक बैंक का मैं आपको अभी चार्ट दिखाऊंगा। तो आई हैव बीन ट्रेडिंग कोटक बैंक फॉर द पास्ट 1.5 years, एंड सिमिलरली अदानी पोर्ट्स। सो ऐसे ऐसे लेवल्स कई बार मार्केट आपको दिखाती है कि इतना फ्री का पैसा मार्केट में अवेलेबल है, थोड़ा सा बस आपको एक आई चाहिए देखने के लिए। ऐसे ही मैं आपको 3-4 स्टॉक्स और बताऊंगा जिसके अंदर मैं करता रहता हूँ। एक स्टॉक अभी भी एक्टिव है, उसमें आप कर सकते हो। After this slide, I will just tell you, okay? And the temporary problems. The third point is why do prices fluctuate? Because of temporary problems. कई बार क्या होता है, कंपनीज जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का अगर आप एग्जांपल लेंगे, लास्ट ईयर इन्फोसिस के कुछ रिजल्ट्स खराब आ गए थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो फिर द स्टॉक ओपनड आई थिंक 10% गैप डाउन। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि 1300 के प्राइस पे इन्फोसिस उस टाइम पे मिल रहा था, एंड इट जस्ट वेंट अप टू 1500 और 1600 इन जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 months, एंड अगेन इट गैप डाउन। क्योंकि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो एंड these L&T, these companies if they are available at lower prices, तो that means कि कुछ ना कुछ मार्केट में कुछ खराब भले ही हुआ है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल जस्ट गो अप। बिकॉज पिछले 20-30 सालों से जो कंपनियां नॉर्मली चल रही हैं, एक क्वार्टर की वजह से अगर इन्वेस्टर्स इतना इरेशनली उसको सेल कर रहे हैं, तो दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, राइट? प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड स्टॉप लॉस। एक स्टॉप लॉस तो हम लेके चलते हैं, बट एक अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी प्रेजेंट हो जाती है। तो इन्फोसिस में 2 बार मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिखे पिछले साल, एंड आई जस्ट वेंट अप टू इट। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एंड द लास्ट वन इज सेंटिमेंट्स, ओके? सेंटिमेंट्स, ओके? सेंटिमेंट्स के केस में आपको बता दूं कि जब पहले सचिन खेलता था, ओके, इन बैक इन 2010 2009, तो कई बार क्या होता था, सचिन ने अगर जल्दी आउट हो जाता था तो मार्केट भी नेगेटिव क्लोज हो जाती थी, ओके? ऑल्दो सचिन और मार्केट का कोई लेना देना नहीं है, बट पीपल रिएक्ट इरेशनली कि भाई आज तो सचिन से भी रन नहीं बने मैच में, तो हम क्या ही पैसा बना लेंगे। ऐसा कि भाई जब भगवान ने खुद ही कुछ नहीं करा तो हम कौन होते हैं, ओके? सो दीज काइंड ऑफ इरेशनल थॉट्स आर देयर इन द मार्केट, एंड दीज आर द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि जहाँ पे आप बहुत अच्छे से पैसा बना सकते हो, ओके?
I'll just show you on the charts. Okay, just let me open. Okay, here you can note down this website, TradingView. TradingView can just आप like I'm just typing Infosys, and I'll just show you the chart. Okay, you can see here the daily chart. वो कितने अच्छे अच्छे गैप डाउन यहाँ पे खुल रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इन टाइम ऑफ अप्रैल यहाँ पे 10% गैप डाउन खुला था। अराउंड 1250 के प्राइस पे आपको मिल रहा है। कोई चीज अगर 1425 पे चल रही है और आपको इस प्राइस से मिल जाए, सो भाई वोंट यू बाय। ओके, यहाँ पे इतने नीचे तक यहाँ तक बेस बनाया। दिस वाज माय स्टॉप लॉस 1200 के नीचे जस्ट। उसके बाद ये कभी आया नहीं इधर। इनफैक्ट जस्ट 2-3 महीने में इट वेंट अप अगेन टू 1500। उसके बाद वापस यहाँ पे इसने गैप डाउन खोला। यहाँ पे आप देखोगे 2 अर्निंग्स है, ई एंड अनदर ई, दीज आर ऑन रेड कलर। तो मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे लॉस इनको दिखा है, बट ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस टीसीएस एक क्वार्टर के नेगेटिव रिजल्ट से बंद तो नहीं होने वाली। सो आपके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। जिस गैप डाउन कैंडल का जब तक लो ब्रेक हुआ ही नहीं, तो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। और उसके बाद यू कैन सी द काइंड ऑफ प्रॉफिट्स यू कैन जनरेट हियर। ओके, सो फ्री में दो तीन महीने में आपको 10% रिटर्न अगर मिलता रहे, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। ओके, सिमिलरली ऐसे ही इन्फोसिस के अंदर पहले भी एक विसल ब्लोअर कंप्लेन आया था, जब ये 2018 या 19 की बात है। उस टाइम भी मैंने लिया था, पर उस टाइम पैसा मेरे पास काफी कम था, तब उतना कुछ सिग्निफिकेंट उसमें बना नहीं मेरा। ओके, सो और कौन सा मैंने, एक सेकंड, आई वाज आल्सो टेलिंग अबाउट सम अदर स्टॉक्स, लाइफ या कोटक बैंक। ओके, सो कोटक बैंक एक बार हम देख लेते हैं। कोटक बैंक का अगर आप चार्ट देखो ना, इतना अच्छा चार्ट है फॉर द पास्ट 2 years। जब भी ये 1600 के लेवल पे आता है, 1700 के लेवल पे, आप इसको जस्ट बाय करके आराम से आपको 50-60 रुपीज ये दे के ही जाएगा। कोई और ऑप्शन ही नहीं है इसके पास, राइट। यहाँ पे देखो आप कितना अच्छा यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग बेस बना रखा है। 4 to 5 टाइम्स इसके अंदर आपको एंट्री मिली है। सो इस तरीके के स्टॉक्स बड़े एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे बाय करके ऊपर गया, बाय करके ऊपर गया, बाय करके फिर से 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 ऊपर गया। सो मिनिमम 100 रुपीज आपको 5 बारी फ्री के पैसे में यहाँ पे मिले हैं। आप यहाँ पे अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि कोटक बैंक बंद हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। जब होना होगा तो इट विल गो बिलो दिस लेवल। ओके, जब तक वो 1600 का लेवल नहीं तोड़ रहा है, सो व्हाई शुड बी अफ्रेड। ओके, सो एज अ ट्रेडर आपको बस एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है। सिमिलरली इन द केस ऑफ अदानी पोर्ट्स, लाइक इन वाले स्टॉक्स में तो लाइक कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। अदानी पोर्ट्स अब थोड़ा लेवल के बाहर आ गया, लेकिन व्हेन इट वाज ट्रेडिंग इन बिटवीन दिस लेवल, ये वाला जो जोन था, इतनी बार इसने आपको एंट्री दिया 680 to 700 लेवल पे। हर बार इसने जाके ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे कहीं इसने हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस टाइम फिर मैंने बाय नहीं किया था जब ये नीचे गिर गया था। लेकिन आई एंटर्ड एट 450 लेवल एंड आई एग्जिटेड 540 लेवल, 540, हाँ यहाँ पे 540। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे रिवर्सल मेरे को यहाँ पे दिख रहा था, एक हैमर कैंडल बनी थी। सो आई लाइक वी विल टॉक अबाउट द हैमर कैंडल, हाउ यू कैन ट्रेड देम। सो दीज आर द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज की मैं ये कह रहा हूँ कि द टेम्पररी प्रॉब्लम एंड द सेंटिमेंट्स, दीज टू विल गिव यू वन ऑफ द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। कि आपको इररेशनल बिहेवियर से बस थोड़ा सा हट के सोचना है। थोड़ा सा अगर आप हट के सोच गए, तो मार्केट में आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, इट्स मार्केट इज अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर। ओके, तभी आपका पैसा बनेगा। क्योंकि अगर हर कोई पैसा सोच रहा है, अगर आपने मान लीजिए डीमैट अकाउंट कोई खोला हुआ है, आप डीमैट अकाउंट खोल के देखते हो, उसमें एक सेबी का नोटिफिकेशन आता है कि मोर देन 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी। सो मतलब 90% लोग कुछ ना कुछ तो गलत सोच रहे हैं, राइट। तो आपको बस वो नहीं सोचना है। कुछ इरेशनल चीज मार्केट में दिख रही है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के एक बार ट्रेड लेगे तो देखो डेफिनेटली उसमें अंदर पैसा बनेगा। ओके, मैंने आपको 3-4 एग्जांपल तो ऐसे ही गिनवा दिए, ये तो जबकि मैं प्रिपेयर करके भी नहीं आया था। ओके, तो जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे, तो आपके पास ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आएंगे कि मतलब इतने अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी कि क्या ही बताऊं। ओके, वो आप करोगे तो आपको फील होगा। ओके, सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल इन द मार्केट। द फर्स्ट वंस आर द बुल्स। बुल्स क्या होता है, बुल के सींग होते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि बुल जब कभी अटैक करता है तो सींग से उठा के ऊपर फेंक देता है। सो दैट मीन्स बुल मतलब कि ऊपर जाना। ओके, सो दैट इज हाउ दे केम अप विद द टर्मिनोलॉजी। आई डोंट नो मतलब कैसे लेके आई है, इसी तरीके से लेके आए थे। ओके, मतलब कि सही है नहीं, बट वी से कि व्हेन द मार्केट इज बुलिश, तो मतलब कि मार्केट ऊपर जा रही है। ओके, सिमिलरली व्हेन द मार्केट इज बियरिश, तो मतलब मार्केट नीचे जा रही है। भालू जो होता है, दैट इज द बियर। सो इट अटैक्स विद दिस पॉ एंड पुशेस द पर्सन डाउन, तो मतलब कि नीचे चला जाता है। तो बियर्स टेंड टू टेक द मार्केट बिलो। Okay, so that is how they came up with the terminology bulls, bears, and then the third one are the stags. Stags कौन होते हैं? सबसे फालतू लोग होते हैं मार्केट में, they don't know anything. Okay,
मार्केट में सुबह 9 बजे जो लोग बैठ जाते हैं, सारी चीजें पढ़ते रहते हैं, सीएनबीसी देख लिया, ये सब कर लिया, वो सब कर लिया, लेकिन जब पैसा लगाने का टाइम आता है वो पैसा नहीं लगाते। ओके, सो देर इज नो रिस्क इन्वॉल्व, देर इज नो स्किन इन द गेम। ओके, वो बस मार्केट एनालिस्ट होते हैं, जो सीएनबीसी पे कुछ लोग आते हैं, ये यहाँ पे बाय कर लीजिए, वहां बाय कर लीजिए, जबकि उन्होंने खुद बाय नहीं करा होता। ओके, सो दैट इज द थिंग। आप बस टैक्स से दूर रहो, मार्केट में आप कुछ ना कुछ जरूर सीख जाओगे। ओके, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द पर्सन कि कौन लोग फेक हैं, कौन किस तरीके से काम कर रहे हैं मार्केट में, वो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ओके, स्टैक्स के पास कुछ काम नहीं होता है। And that is how I came up with the name of my company, that is Omnibulls. Omni means in all spheres of our life, and then bulls means, as we discussed, the tendency to go higher. So Omnibulls means tendency to go higher in all spheres of our life. So I want all of you to go up in all spheres of your life. Okay, that is how I came up with the name Omnibulls. And now we are going to start with the technicals. If you have any question, you can just ask. Like, we are shifting to the second part. Okay, if you have any question, you can just write in the comment box. We are just, okay, you are a long-term investor, but are you intraday trading? Okay, like I have hired 2 people who do intraday trading, and I personally do swing trading. Okay, what is ACC company? Okay, ACC is a cement company. Okay, Tane, ACC is a cement company. ACC के एक बार शेयर भी आपको दिखाता हूँ. Like, if you have any other question, you can just type in the comment box. We are taking a break of 1 or 2 minutes. मैं भी इतने पानी पी लूँ एक बार. Okay, ACC has also gone up. Okay, जबकि अदानी के ऊपर वर्डिक्ट आ गया है कि ये 3 महीने और इन्वेस्टिगेशन चलना चाहिए, बट यू कैन सी द मार्केट इज इरेशनल। ओके, कि किस तरीके से मार्केट इज परफॉर्मिंग। तो जैसे ये एसीसीपी का न्यूज आया था या फिर एनडीटीवी का भी न्यूज आया था, एनडीटीवी को भी अदानी ने खरीद लिया है, तो यू कैन सी कि किस तरीके से मार्केट रेट्स इसके बढ़ते जा रहे हैं। ओके, पहले चल रहा था आई थिंक जून के आसपास, एक्चुअली यहाँ कई न्यूज आई थी उसकी, और उसके पहले तक ये ऑलरेडी बाइंग शुरू हो जाती है। ओके, तो जब आपको बेस्ट न्यूज आए तब आप बाय मत कीजिए, उससे पहले देख लीजिए अगर चार्ट मूव अच्छा करा है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो इनसाइड प्लेयर होते हैं वो ऑलरेडी उसको बाय करके बैठे रहते हैं। ओके, ओपिनियन ऑन अपकमिंग आईपीओ ऑफ ओला इलेक्ट्रिक एज द कंपनी इज इन ह्यूज लॉस। हाँ, तो वही कंपनी अगर लॉस में है तो आपको नहीं लेना चाहिए। आई वुड ऑल्सो ऑलवेज सजेस्ट दैट, राइट, क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत हाइप बना देते हैं। पेटीएम भी लॉसेस में था, बाकी सब चीजें लॉसेस में थी। आज आप देख रहे हो कि 2100 पे आईपीओ आया था पेटीएम का, एंड अभी 500-600 पे चल रहा है, तो इट हैज लॉस्ट अराउंड 75% ऑफ इट्स वैल्यू। तो आप भी उसमें ही ऐसे ही रह जाओगे ओला इलेक्ट्रिक में। अगर मान लीजिए मिस कर भी दिया, मान लो ओला इलेक्ट्रिक में लॉस में रह के भी शेयर प्राइस उसका ऊपर चला गया, तो वी डोंट नीड टू वरी। मतलब हर चमकती चीज सोना नहीं होती, दैट इज द थिंग। आपको हर चीज के पीछे नहीं भागना है, आपको बस एक सिलेक्टेड चीज अपनी सिलेक्ट करनी है कि हाँ मुझे ये समझ आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ये कोटक बैंक, अदानी पोर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ये मेरे को समझ में आता है। ओके, सो वो वाली चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो चीज आपको समझ में आती है उसमें इन्वेस्ट करो। ओला के बारे में अगर आपको समझ में आता है कि ये टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, वरना आई डोंट थिंक कि इट मींस लाइक, पर्सनली मैं तो नहीं करूंगा। ओके, बिकॉज हार्ड अर्न मनी है, काफी कहीं और देखते हैं। बट आई योर व्यूज ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग, इज इट सेफ टू ट्रेड फॉरेक्स? ओके, फॉरेक्स में पर्सनली देखो, मैं एक प्रॉप ट्रेडिंग फर्म में भी काम करता हूँ, तो वहां पे तो हम फॉरेक्स करते हैं, बट पर्सनली मैंने वैसा फॉरेक्स अपने अकाउंट से तो नहीं किया है। लाइक मेरे को नहीं पता कि वो सेफ है कि नहीं, बट जहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आप गुजरात में गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में अगर आप करते हैं तो वहाँ तो लीगल है, लेकिन बाकी जगह आप करेंगे तो वैसे तो इलीगल बोला जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंडियन मार्केट ही एक बार पहले ट्राई करें। तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द बॉटम लाइन इज एंड व्हाट अबाउट स्टार्टर टेक्नोलॉजी? स्टार्टर टेक्नोलॉजी अच्छा है, बट ऑलरेडी काफी भाग चुका है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डज ग्राफ रिप्रेजेंट? या ग्राफ हम एक बार डिस्कस करेंगे, अभी ग्राफ हम टेक्निकल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द बॉटम लाइन इज? बॉटम लाइन वो फंडामेंटल्स में डिस्कस होगी। आई थिंक हमारी टीम से कोई 12th या 13th को अमित तिवारी जी विल बी टेकिंग द सेशन, वो फंडामेंटल्स पे लेंगे, उसमें वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बॉटम लाइन बस मैं बता देता हूँ, बॉटम लाइन कुछ नहीं होता, बस नेट प्रॉफिट को ही बॉटम लाइन कहते हैं। टॉप लाइन इज द सेल्स, कि जो कंपनी ने सेल्स करी है, एंड उसके अंदर से डिडक्ट अगर आप एबिटा कर लोगे, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, तो जो व्हाटएवर इज लेफ्ट विद द कंपनी, दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ द कंपनी। ओके, और कोई क्वेश्चन? ओके, इफ यू हैव company shares and it took by another
कंपनी बी इज द शेयर ट्रांसफर और वी गो इन लॉस। हाँ, लॉस नहीं होता एक्चुअली, उसमें इट डिपेंड्स कि वो किस रेशियो पे उसको बाई किया गया है। जिस भी रेशियो में होगा वो आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएंगे 2 या 3 दिन में। सो यू कैन सी कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था, कितना आपका बचा है, बट जनरली वो प्रॉफिट ही होता है अगर कुछ कंपनी होती है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रे मार्केट प्रीमियम? ग्रे मार्केट प्रीमियम जनरली क्या होता है, जैसे ओटीसी मैंने आपको बताया था ना, ओवर द काउंटर ट्रेड्स। तो सिमिलरली देयर इज अ ग्रे मार्केट प्रीमियम, कि मान लीजिए आईपीओ जो है 100 रुपए पे आ रहा है, लेकिन जो ग्रे मार्केट है बिफोर लिस्टिंग ओटीसी ट्रेड्स में किसी ने 150 पे ट्रेड कर लिया, किसी ने 160 पे ट्रेड कर लिया, तो दे वुड से कि 50 या 60 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम है मार्केट में, तो दैट इज द ग्रे मार्केट प्रीमियम। ओके, how to identify if established companies like Infosys are actually going down, not for 1 to 2 quarters? Like देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे को एक्चुअली पता था कि ये टर्न आउट स्टोरी होगी या फिर नहीं। यस, इज एनीबॉडी सेइंग समथिंग? ओके, देखो इन्फोसिस के केस में लाइक सी वी आर नॉट ऑलवेज श्योर। देखो ट्रेडर्स आप देखोगे ना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग होते नहीं है। ओके, देयर आर लिटिल बिट ऑफ इंट्रोवर्ट्स, उनको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ओके, जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है मार्केट को लेके वो लॉस में चल रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखिए, पहला दिन था जब गैप डाउन खुला 10%, एक हैमर कैंडल बनी। मैं आपको अभी टेक्निकल्स बताऊंगा किस तरीके से, लेकिन अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है ये, अगर इफ इट द प्राइस ब्रेक्स बिलो 1200 तो मैं एग्जिट कर लेता उसको। ऐसा नहीं था, मेरे को लॉस लेना था, लेकिन मार्केट ने कभी लॉस के लेवल पे वो आया ही नहीं, और इनफैक्ट वो प्रॉफिट में गया। तो वो रिस्क हम यहाँ पे लेते हैं, तो वी नीड टू टेक द रिस्क। और अगर आप मार्केट में रिस्क नहीं लोगे, 100% कोई भी श्योरिटी नहीं होती है, राइट? मार्केट एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको कोई प्ले बुक बताई नहीं गया कि आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपका पैसा बन ही जाएगा। ओके, हर रोज हमारे लिए एक नया होता है, मेरे को नहीं पता मेरे साथ कल क्या होने वाला है, एंड ऐसा ही लाइफ में भी होता है। हमें नहीं पता कल कोरोना आ जाए, कल मार्केट क्रैश हो जाए, कल क्या हो जाए, बट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स, या फिर अपनी एनालिसिस कि किस तरीके से आप उस पर रिएक्ट करोगे। रिएक्ट करना एक ट्रेडर का काम है, प्राइस को भगाना या किस तरीके से वो मूव करेगा। जब तक आपके पास 100-200 करोड़ का पैसा नहीं है, तब तक आप मार्केट मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब कि अभी वी आर नॉट एट दैट स्टेज कि हम मार्केट को बताएं कि उसको कहाँ जाना है। मार्केट जहां जाएगी हम उसके साथ फ्लो कर सकते हैं। ओके, दैट इज व्हाट वी कैन डू। तो वी विल जस्ट पुट अ स्टॉप लॉस कि हाँ, कंपनी मतलब इन्फोसिस मैंने बाय कर ली, एक अच्छे प्राइस पे मिल रही थी, दैट इज माय स्टॉप लॉस। अगर उसके नीचे जाती है आई विल टेक द एग्जिट। तो मतलब उसका अगर उसने लो ब्रेक करा तो दैट विल मीन कि हाँ, कंपनी के साथ कुछ गलत है। ओके, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि वो बस एक फ्लिंग था, कुछ टाइम के लिए मार्केट ने कुछ बड़े प्लेयर्स ने पैसा निकाला, तो हमें एक एंट्री का अच्छा मौका मिल गया। सो दैट्स इट। ओके, बाकी हम टेक्निकल्स में एक बार डिस्कस कर लेंगे। ओके, व्हाट डज इट मीन व्हेन आईपीओ इज ओवर सब्सक्राइब्ड? ओके, मान लीजिए किसी कंपनी को 1 लाख रुपए रेज करने हैं, लेकिन मार्केट में जब वो गई तो उसको 10 लाख रुपए देने वाले लोग मिल गए। ओके, तो मतलब इट इज ओवर सब्सक्राइब बाय 10 टाइम्स, लेकिन सबको तो वो नहीं मिलेगा, तो एक लकी ड्रॉ मिल जाता है कि आपको एक एक 2-2 शेयर सबको अलॉट ऐसे हो जाएंगे। तो दैट इज द ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्राइब जब होता है तो इट इज जनरली बीइंग सेड कि मार्केट में इस शेयर की डिमांड ज्यादा है, तो दैट इज व्हाई इट शुड लिस्ट एट अ प्रीमियम। एंड जब वो लिस्ट होता है उसके बाद भी लोग उसको खरीदने में लगे हुए हैं, क्योंकि दे थिंक कि कंपनी हैज अ ब्राइट फ्यूचर, और मे बी इट्स जस्ट द यूफोरिया, यू विल नेवर नो, बट आपको उसमें एक बार ट्रेड लेना ही पड़ेगा। दैट इज द थिंग। ओके, okay, and how to read candlestick graph? Yes, we will discuss about it. Do companies trade on NSE and BSE both, and will they have same valuation on both? Yes, price उनका same होगा, प्राइस जो है उनका सेम होगा। लाइक इफ यू विल जस्ट टेक एन एग्जांपल, इन्फोसिस का ले लेते हैं। इन्फोसिस देखो, दिस इज द एनएसई चार्ट, इन्फोसिस लिमिटेड 1 डे एनएसई। ओके, इट्स ट्रेडिंग ऑन एनएसई। तो अभी इसका प्राइस एक बार देख लेते हैं। इट इज 1522.8, 1522.8। ओके, इन्फोसिस ऑन बीएससी 1522.95। ओके, तो आप देखोगे 1522.95 और 1522.80, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 15 पैसा। सो आप ऐसा भी कर सकते हो कि बीएससी पे आपने सेल किया, एनएससी पे बाय किया, तो इस तरीके का ऑप्शन आता है। आपने जीरोधा पे भी देखा होगा, अगर आप कोई बाय सेल कर रहे हो तो वहां पे एक ऑप्शन आता है एनएससी में खरीदना है या बीएससी में बेचना है या कैसे करना है। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। कुछ लोग आर्बिट्राज करते हैं, राइट, कि 1522 पे यहाँ पे बाय कर लिया, वहां पे सेल कर दिया, लेकिन जब तक इसके अंदर डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें
लाइक 15 पैसे का प्रॉफिट तो है, Excuse me, sir. लेकिन जब आप चार्जेस को इंक्लूड कर लोगे तो देन इट वुड नॉट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेड. ओके, सो डिफरेंस इसमें कम से कम भी 5 या 6 रुपए का जब तक आएगा नहीं, तो तब तक इट इज नॉट वर्थ इट. ओके, okay, just let me see if there are any questions. Okay. Sir, I have a doubt. Yes, yes. Okay, no issues. Okay, which one is better, fundamental or technical? Okay, like personally I follow technical on a fundamentally good company. Okay, fundamentally अगर कोई अच्छी कंपनी है और अगर आपको स्टॉप लॉस काटने का मन नहीं है, तो आप ये चीज कर सकते हो कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी को टेक्निकली अच्छे लेवल पे बाय करना. दैट इज द गुड थिंग. ओके, तो इन्फोसिस या टीसीएस या फिर एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, दीज आर फंडामेंटली गुड कंपनीज, बट व्हेन दे आर अवेलेबल एट द बॉटम एंड यू कैन सी सम टेक्निकल चार्ट एंड पैटर्न्स, देन यू कैन बाय इट. ओके, हाउ टू रीड कैंडलस्टिक ये हम डिस्कस करेंगे. What should we prefer, fundamental or technical? Both, ये मैंने बता दिया अभी. How much money enough required to move the market? Okay, it depends कि कौन सा स्टॉक है. ओके, जिस स्टॉक की कंपनी, जिस स्टॉक की वैल्यू ही 100 करोड़ से है, उसको आप 2 या 3 करोड़ से मूव कर सकते हो. जिसकी मतलब आप ये मान के चलिए मार्केट कैप का अगर 2 या 3% आपके पास है, सो देन यू कैन मूव दैट मार्केट अकॉर्डिंग टू यू. ओके, बट निफ्टी, बैंक निफ्टी को मूव करना इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. For someone who does not want to enter the share market actively or the stock basket radars like small case recommended, हाँ small case में कर सकते हो, वरना ELSS में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा 1.5 lakhs का, which is the best platform for trading. ओके, बनाना तो मैं देखो अपना चाह रहा था. अभी के लिए यू कैन गो फॉर Zerodha. ओके, Zerodha के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट अकाउंट ओपनिंग फीस अगर आप 300 रुपए नहीं देना चाहते, तो यू कैन गो विद फायर्स एज वेल. सो मेरे फायर्स और मतलब मेरे पास तो एटलीस्ट 5 या 6 ब्रोकर्स के अकाउंट है, बट फायर्स एंड Zerodha आर बोथ वेरी गुड ब्रोकर्स. ओके, एंड किसी और का कोई क्वेश्चन? विच टू प्रेफर कैंडलस्टिक इंडिकेटर. ओके, ये भी हम डिस्कस करेंगे. विच इज गुड प्लेटफॉर्म टू ट्रेड, ये मैंने बता दिया. बट डज इट मीन व्हेन आईपीओ? ओके, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डन. Okay, so shall we start with the technical part or किसी और को कोई question है? You can just type in the yes if you want to proceed with the technical part. Okay, let's start. Stock. ये हम अभी चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से हम देखते हैं. तो एक स्टॉक की 2 चीज होती हैं. उस दिन उसकी वॉल्यूम कितनी ट्रेड हुई, उसका प्राइस कितने पे था. वॉल्यूम मैं आजकल नहीं देखता हूँ, 4-5 साल पहले देखता था. शुरू में आई थिंक देखना इज वेरी गुड. Okay, so technician does not take into account the fundamentals, the market psychology and the economic factor. तो एक टेक्नीशियन को कोई मतलब नहीं है कि पुतिन क्या कह रहा है या फिर जो बाइडेन क्या कह रहा है या फिर डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहा है या मोदी जी क्या कह रहे हैं. वो क्या सोचता है कि मार्केट में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने आप. जैसे कि मान लीजिए मोदी मालदीव्स गए, कुछ बोल दिया, मार्केट ने रिएक्ट कर दिया, नीचे गिर गई. ठीक है, तो मार्केट टेक्नीशियन इज सेइंग कि जो भी कुछ रिएक्ट किया सारा कुछ है वो है न्यूज. जो सारी न्यूज है वो प्राइस के अंदर ही है. मार्केट इज वेरी एफिशिएंट. बट मैं ऐसा मानता हूँ कि मार्केट एफिशिएंट होती है, आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है. ओके, एंड सिमिलरली वॉरेन बफेट के केस में भी एक बार क्या हुआ था कि अमेरिकन ऑयल स्कैंडल हुआ था. ओके, एमएक्स कार्ड होता है, तो एमएक्स का कार्ड आपने देखा होगा, क्रेडिट कार्ड होता है. तो उस टाइम पे कोई ऑयल स्कैंडल हुआ था जिससे कि उनको 10 या 12 मिलियन डॉलर्स की कुछ हिट लगी थी. बट द कंपनी वाज वर्थ मोर देन 150 मिलियन डॉलर. उनको अगर एक छोटी सी हिट लगती है तो उससे बिजनेस पे कोई खास इफेक्ट उनको पड़ा नहीं था. ओके, वॉरेन बफेट वहां पे जाके देख के आया कि लोग अभी भी एमएक्स के कार्ड यूज कर रहे हैं. सच कोई ग्राउंड लेवल पे कुछ डिस्टॉर्शन हुआ नहीं है, लेकिन जो उसका शेयर प्राइस था वो $100 से $50 आ गया था. ओके, सो वॉरेन बफेट बॉट द शेयर एट $50 एंड दो साल बाद ही सोल्ड इट एट $160. ओके, सो सीधा 3x रिटर्न इन जस्ट 2 years या आई थिंक 1.5 years. सो दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. और उस टाइम उसने आई थिंक 5 या 6% स्टेक ही बाय कर लिया था. अराउंड $20 मिलियन की उसने इन्वेस्टमेंट की थी अमेरिकन उसमें. सो यू कैन सी कि 40 या 50 मिलियन डॉलर्स उसने सिर्फ 1.5 साल में इसी एक नॉर्मल चीज की वजह से बना लिया. सो यू कैन ऑल्सो थिंक कि टर्न अराउंड स्टोरीज एंड ऑल दिस थिंग्स आर वेरी गुड थिंग इन द मार्केट. ओके, अभी मुझे कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं, मैं अभी जब एंड में आएंगे तो आई विल जस्ट सी. ओके, बिलीव बट whatever is included. एंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए टेक्निकल्स काम होते हैं. ओके, एंड अ टेक्नीशियन सेज कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, कि जो पहले हुआ था आने वाले टाइम में भी वही होगा. जैसा कि हमने कोटक बैंक में देखा,
पहले के टाइम पे क्या हुआ, 1700 या 1650 से प्राइस पलट रहा था, वापस बाय कर रहे थे लोग। सो पूरे 1 साल तक जब भी वहां पे प्राइस आया, वापस से लोग बाय करने आए, मैं भी उनमें से एक था। वापस से हमने प्राइस को ऊपर उठाया, वापस से हमने एग्जिट ली, ऐसे ही हम करते रहे। ओके, तो हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, उसी तरीके से वो पैटर्न बनते हैं। मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा है, मान लीजिए आपको चार्ट्स वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं है। ओके, जैसे 1930s या 40s का टाइम था, बिल्कुल हम 100 साल पहले चले गए हैं। ओके, तो उस टाइम पे क्या होता था, मान लीजिए आपने कोई प्राइस 100 रुपये में बाय करा शेयर और आपने 108 पे बेच दिया, तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि हाँ, 100 प्राइस जो एक अच्छा प्राइस है, मेरे को अगर फिर से मिल गया ना, तो मैं उसको वापस से बाय कर लूंगा। तो मार्केट जैसे ही नीचे आती है 101 या 100 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। आप देखोगे कि वहां पे क्या होता है कि आप जैसे काफी लोगों ने जहाँ पे बाय किया होगा, वहां से मार्केट एकदम से भागने लग गई थी। ओके, तो दैट इज वाई कि वो एक बायस बन जाता है कि हाँ, ये 100 रुपए का जो प्राइस है ना, काफी अच्छा है, तो वापस लोग बाय करने लग जाते हैं और वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है, उसकी वजह से मार्केट बाउंसेस। ओके, एंड दैट इज वाई वी कम अप विद द टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। Okay, there are basically three kinds of charts: line chart, bar chart and the candlestick chart. Okay, इनको एक बार लाइव देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं। ओपन इट। ओके, एक बार कमेंट्स भी देख लेता हूँ कुछ, अगर किसी ने कुछ लिखा तो नहीं है। जस्ट अ सेकंड। ओके, यस, 63, यस यस। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, आई जस्ट रिफ्रेश इट। सो दिस जो अभी हमने देखा, इट वाज द कैंडलस्टिक चार्ट ऑफ इन्फोसिस। ओके, ट्रेडिंग व्यू आप खोल सकते हो। नॉर्मल रिलायंस देख लेते हैं, अंबानी जी सर आंखों पर। ओके, सो डेली चार्ट के साथ में देर इज अ सिंबल कैंडल का यहाँ पे। इफ यू विल क्लिक हियर, देर इज अ बार चार्ट ऑप्शन, देर इज कैंडलस्टिक, होलो कैंडल्स, लाइन चार्ट, लाइन विद मार्कर, स्टेप लाइन, एरिया चार्ट, बेस लाइन, कॉलम्स, हाइकेनाशी, रेंको, कागी, पॉइंट एंड फिगर, ये रेंज। तो बाकी बाकी ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं है। वी विल जस्ट फोकस ऑन बार चार्ट, कैंडलस्टिक एंड लाइन चार्ट। इनमें से भी वी विल जस्ट स्टिक टू कैंडलस्टिक, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए इट इज मोर देन इनफ। मैं आपको बस बता देता हूँ लाइन चार्ट किस तरीके से इट वर्क्स। तो अगर आप लाइन चार्ट को यहाँ पे देखोगे, लाइन चार्ट में एक डॉट है एंड इट इज जस्ट मूविंग। ओके, एंड ऑन द एक्स एक्सिस इफ यू विल लुक, देयर इज अ टाइम। ओके, टाइम इस तरीके से चल रहा है, डेली चार्ट है ये। एंड ऑन द वाई एक्सिस देयर इज द प्राइस, राइट। तो ईच डॉट रिप्रेजेंट्स कि उस दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्या है। ओके, सो इफ यू लुक हियर, मंडे 20th नंबर, जो क्लोजिंग प्राइस ऑफ रिलायंस है वो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर ऊपर की तरफ यहाँ पे देखोगे, वो आपको एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस दिखेगा। ओके, जैसे मैं होवर करता रहूंगा, देखो इस तरीके से प्राइस चेंज हो रहा है कि किस किस प्राइस पे किस किस दिन मार्केट जो है क्लोज हुआ। जैसे यहाँ पे 1.81% मार्केट ऊपर क्लोज हुआ लास्ट डे से, यहाँ पे 0.18% ऊपर क्लोज हुआ मार्केट। अगले दिन क्या हुआ, -0.22% नीचे क्लोज हुआ। ओके, सो ईच डे का जो क्लोजिंग प्राइस है, दैट इज बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम। ओके, so that is how a line chart is formed, इस तरीके से। Similarly, there is the bar chart. Bar chart क्या होता है, इस तरीके से bar chart। Let me just zoom in a bit. Okay, या फिर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। Okay, it's just similar to a line chart, but इसके अंदर क्लोजिंग प्राइस की बजाय ओपनिंग प्राइस, लो प्राइस और हाई प्राइस ऑफ द डे आर इंक्लूडेड। ओके, ऑन द लेफ्ट साइड, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे, इस प्राइस पे जो है मार्केट ओपन होती है। ओके, बार के जो लेफ्ट साइड पे, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस बार। ओके, इस बार को अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो लेफ्ट पॉइंट है, लेफ्ट पॉइंट मींस कि इस प्राइस पे द मार्केट वाज ओपनड। सो ये कौन सा प्राइस था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 2520 के अबव, 2522 आप ले लो। ओके, तो 2522 पे कुछ नहीं दिया मेरे को। व्हाट, कैन यू कम अगेन? ओके, सो उस दिन पे मार्केट मान लीजिए ओपन हुई, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई एंड समवेयर अराउंड यहाँ पे क्लोज हो गई। सो दिस इज द ओपनिंग प्राइस। ये दिन का उसने हाई मारा था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2580 तक का उसने हाई बनाया। उसके बाद मार्केट इंट्राडे में नीचे चली गई, मान लीजिए सुबह 9 बजे यहाँ खुली, 12 बजे यहाँ पे थी, 1 बजे यहाँ पे थी, 3 बजे वापस यहाँ पे बंद हो गई। सो जो 1 बजे का लो मारा वो 2480 का था, एंड जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो 2560 पे थी। सो दिस इज हाउ वी कैन जस्ट प्लॉट अ बार चार्ट कि ये जो है डे का लो हो गया, दिस इज द डे ओपनिंग, राइट साइड पे डे का क्लोज एंड द टॉप वन इज डे का हाई। सो एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीपल डेज के किस तरीके से हैं, और whenever the closing price is above the opening price, the bar is represented with a green candle। तो मतलब जैसे हरी बत्ती होती है जिसको आप बोलते हैं कि हाँ इट्स अ गुड सिग्नल,
कि गाड़ी चल सकती है, तो ऐसी मार्केट चल जाती है। तो इस तरीके से ही इट इज रिप्रेजेंटेड इन द ग्रीन कलर। सिमिलरली जब ओपनिंग प्राइस इज मोर देन द क्लोजिंग प्राइस, मतलब कि नीचे क्लोज हुआ है मार्केट ओपनिंग से, सो देन इट इज रिप्रेजेंटेड इन रेड कलर, एंड दिस इज हाउ द मार्केट मूव्स अप। ओके, लाइन चार्ट पे क्या होता है, बस ये राइट साइड का पॉइंट ही प्लॉट होता है। ओके, उसमें आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस का आइडिया लगता है, उसको आपको ये आइडिया नहीं लगता कि इंट्राडे में क्या हुआ, पूरे दिन में क्या हुआ, आपको बस क्लोजिंग दिखती है। बार चार्ट में क्या होता है, इट गिव्स यू अ होल आइडिया कि पूरे दिन में हाई कितना था, लो कितना था, क्लोजिंग कितना था एंड ओपनिंग कितना था। लेकिन क्या होता है, बार चार्ट को देखने में ना इतना अच्छा नहीं लगता। आप देखोगे कि मजा सा नहीं आ रहा देख के, कुछ डॉट डॉट से ऐसे हैं। तो लोग कैंडलस्टिक चार्ट बना देते हैं इसी चीज को। सो कैंडलस्टिक इज ऑल्सो वेरी वेरी सिमिलर टू बार चार्ट, बस इसके अंदर लेफ्ट या राइट वाला सीन नहीं होता, बस सीधा कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, कि अगर ग्रीन कलर किया तो यहाँ पे ओपनिंग हुई होगी, यहाँ पे क्लोजिंग, this was the day high, and this lower wick is the day low. Okay, so this is how a candlestick is formed. These upward and downward thing, these are called the wicks, इसको हम wicks कहते हैं। And this is the middle body, इसको, this is the middle body. So this is the high of the day, this is the low of the day, this is the high of the day, this is the closing price, this is the opening price, and this is the low of the day. और अगर ये ग्रीन कलर की है, so that means कि ओपनिंग लोअर थी एंड क्लोजिंग हायर थी। इफ इट इज ऑफ रेड कलर, तो दैट मीन्स कि मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ था एंड इस लेवल पे क्लोज हुआ था। ओके, सो ये इस पर्टिकुलर डे का, और यहाँ पे ये प्राइस इज रिप्रेजेंटेड हेयर। ओके, मैंने अभी लॉग इन नहीं किया हुआ है तो इसलिए ये आ रहा है। इनकॉग्निटो विंडो चलाने का थोड़ा स्टॉक था, आप देखो यहाँ पे इट इज इनकॉग्निटो विंडो। ओके, तो बाय डिफॉल्ट वो आदत चली जाती है कंट्रोल शिफ्ट एंड टाइप करने की। ओके, so that is how you can just form a candlestick chart. Okay, and we have just seen them in live, so we will just also move forward. Okay, so then comes the support and resistance. So हम कुछ लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं हम चार्ट के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा। सपोर्ट, just read the definition first, कि सपोर्ट इज द प्राइस बिलो विच द स्टॉक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल, कि इसके नीचे जो है मार्केट फिलहाल के लिए नहीं जा सकती है, हम ऐसा मान के चलते हैं। रेजिस्टेंस इज द प्राइस अबव विच द स्टॉक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू राइज। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यह है कि हम एक्सपेक्टेड वर्ड यूज कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इसके नीचे जाएगी ही नहीं, हम ये कह रहे हैं कि फिलहाल के लिए इसको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या है कि बायर या सेलर्स एक्टिव है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई स्टॉक जो है 100 रुपए में खरीदा, तो जब वो दूसरी बार वापस आपको 100 मिलेगा ना, तो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करोगे। वो एक साइकोलॉजी उस तरीके से काम करेगी। ओके, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो इट्स बेसिकली अ गैम्बल एट लो रिस्क। ओके, ट्रेडर आप तभी बन पाओगे जब आप ये मान लोगे कि आप मार्केट में जुआ खेल रहे हो। ओके, तो इट इज जस्ट अ गैम्बलिंग बट विद अ लोअर रिस्क एंड अ कैलकुलेटेड गैम्बल। ओके, कैलकुलेटेड गैम्बल अगर आप करोगे तो जो डेफिनेटली लाइक एक कैरियर तो है ये, लेकिन अगर आप कुछ भी कहीं भी बाय या सेल करोगे तो गैम्बल विद, लीजिए दिस इज द 100 लेवल, ऊपर है 150 का लेवल। तो 150 के लेवल पे क्या हुआ, एकदम से यू टर्न ले लिया स्टॉक ने। ओके, सो व्हेनेवर द स्टॉक टेक्स अ यू टर्न, दैट मींस इट्स अ रेजिस्टेंस। ओके, जहां पे आपको यू टर्न दिखता है लास्ट में, इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट इज फेसिंग अ रेजिस्टेंस। मान लीजिए आप एक कमरे में बंद हो, आपको ऊपर फेंका जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बॉल पड़ी है, बॉल को आपने ऊपर फेंका, बॉल ऊपर लग के नीचे आ जाती है। ओके, तो दैट मीन्स इट इज फेसिंग अ रेजिस्टेंस एट द सीलिंग, एंड नीचे जैसे ही वो बाउंस करती है फ्लोर पे, तो यहाँ से वो बाउंस कर जाती है फ्लोर से, तो दैट इज अ सपोर्ट फॉर द बॉल। तो बॉल क्या करती है, इसके नीचे ऐसे जो क्रेजी बॉल होती थी पहले बचपन में, आता है, तो फिर वो ऐसे बीच में घूमती रहती थी। लेकिन अगर दीवार थोड़ी सी कमजोर रहेगी, बार बार अगर बॉल मारती रहेगी परपेचुअली, मान लीजिए जैसे रॉक्स होते हैं, उसके ऊपर पानी जब मारता रहता है बार 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 बार, तो फिर वो कन्वर्ट होके इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिस वो हो जाता है। ठीक है, आपको याद होगा साइंस में जैसे, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि अगर मान लो बार बार कोई प्राइस या बॉल बार बार एक सीलिंग पे टच कर रही है, तो इट बिकम्स वीकर। ओके, हम ये मानते हैं, एंड देन इट गिव्स अ ब्रेकआउट, कि एक बारी जो है पाप का घड़ा भर जाता है, एंड आफ्टर दैट इट जस्ट मूव्स अप। ओके, तो इस तरीके से सेम यहाँ पे भी होता है कि प्राइस बिलो विच द स्टॉक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो मतलब ये फॉर द टाइम बिंग, कुछ टाइम के लिए तो मार्केट जरूर एक बार रेंज में बनेगी। तो दो तरीके के ट्रेडिंग स्टाइल है, या तो आप इस रिवर्सल्स को प्ले कर सकते हो, या फिर जब मार्केट ब्रेक करे, कि मतलब कि ये लेवल वीक हो चुका है, तब आप उसको प्ले करो।
ओके, एक टाइम पे आप ट्रेंड के साथ हो, एक टाइम पे आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो। सो ये दोनों अलग-अलग ट्रेडिंग स्टाइल है। मैं प्रॉप ट्रेडिंग फर्म में जहाँ पे काम करता हूँ, वहाँ पे मैं रिवर्सल्स ज़्यादा प्ले करता हूँ। इंडियन मार्केट में मैं ब्रेकआउट ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। ओके, दैट इज़ माय ट्रेडिंग स्टाइल। सो आपको भी अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करना है, वो आप करोगे तो अपने आप आएगा। मैं आपको बेसिक्स बता सकता हूँ, इनके ऊपर आप डिटेल्स में भी मतलब मोस्टली लोगों को पता होगा ये चीज़ें। मैं बस रिआइटरेट करके बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर 100 लोग जॉइन हुए हैं, तो उनमें से आई थिंक 50-60 लोगों को पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, तो लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। एंड सिमिलरली व्हेन इट बाउंस फ्रॉम द सपोर्ट, तो इस तरीके से इट बाउंसेस फ्रॉम द सपोर्ट। ओके, सो आपको क्या करना है कि मान लीजिए मार्केट अब यहाँ पे आ गया। अब व्हेनेवर इट कम्स एट रेजिस्टेंस, यू कैन जस्ट टेक अ स्टॉप लॉस, कि यहाँ पे ऊपर आपने थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख दिया, यहाँ पे मार्केट आई तो आपने बस सेल कर दिया। तो यहाँ पे लेट्स से अगर एक्स अमाउंट का स्टॉप लॉस है, यू कैन गो फॉर अ टारगेट ऑफ 2 या 3x। ओके, सो दिस इज हाउ द ट्रेडिंग वर्क्स। किस तरीके से करना है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो तो आई मीन उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे तो नहीं सिखा सकता, राइट? मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं, वो आप जब मार्केट में जाओगे तो काफी अच्छे से समझ जाओगे। अगर एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो यहाँ पे भी आप उसको बाय कर सकते हो एक छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस देके, कि अच्छा ये लेटेस्ट स्विंग लो था, इसके नीचे फिलहाल के लिए मार्केट नहीं जाएगा। सो वेन एवर यू सी अ ग्रीन कलर कैंडल की यहाँ पे बन रही है, तो यू कैन जस्ट टेक इन द बाय ट्रेड। ओके, एंड वेन एवर द मार्केट ब्रेक्स द रेजिस्टेंस, देन इट बिकम्स द न्यू सपोर्ट। ओके, क्योंकि यहाँ से इसने पहले ब्रेकआउट किया, तो जिन्होंने यहाँ पे काफी मेहनत से काफी ज्यादा पैसा लगा के इसको ब्रेक किया था रेजिस्टेंस को, तो उनको अगर वापस से अपना लेवल दिखेगा, so they will also try to buy it once again. So that is why it again bounces from this level. So generally it is being said that resistance, when it is broken, it converts into the new support, and on the top the market will find another new resistance. तो अगर आप अभी चार्ट देखोगे, लेट्स से कि आप मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो निफ्टी के केस में अभी जैसे ब्रेकआउट हुआ था, तो फिर आपको अब नहीं पता कि ऊपर रेजिस्टेंस कौन सा है। ओके, मैं आपको एक सेकंड डेली चार्ट एक बार लगा लेता हूँ रिफ्रेश करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉग इन नहीं किया था, तो इसलिए बार बार ये ज्वाइन फॉर फ्री का ऑप्शन पूछ रहा है। ओके, सो निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे आपको मंथली चार्ट दिखाऊं, सो मंथली के केस में निफ्टी जब से चला आ रहा है 90s के टाइम से, ओके, यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ से जब मार्केट बिल्कुल चला गया, अब देखो ऊपर रेजिस्टेंस इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, देयर इज नो रेजिस्टेंस। तो जब तक यहाँ से टर्न अराउंड नहीं होगा, मे बी दिस मंथ, ये शायद से जनवरी नया साल एक टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि रेड कैंडल बनना शुरू हो गया है। तो आप 22,000 का स्टॉप लॉस लेके यू कैन जस्ट सेल द मार्केट। आज भी काफी अच्छा एक फॉल देखने को अपने मिला था। मैंने कल यूट्यूब पे ही बताया था कि आज गिरने की संभावना काफी है। ओके, सो आप इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे एक टर्न अराउंड होना शुरू हो गया, तो आप इसको भी अभी सेल करके इसका हाई का स्टॉप लॉस लेके, मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया, सो इफ दिस इज अमाउंट एक्स, सो यू कैन मेक अ टारगेट ऑफ 2 या 3x। तो यहाँ तक का आप इसमें टारगेट ले सकते हो अराउंड 20,500 का। अगर यहाँ से ये वापस घूमने लगता है, तो यू कैन जस्ट ट्रेल योर स्टॉप लॉस एंड जस्ट बुक द प्रॉफिट। हो सकता है कुछ टाइम के लिए यहाँ पे घूमे अंटिल द बजट। सो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स, राइट? पहले जैसे यहाँ से पहले रिवर्स हुआ था, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट पहले नीचे गया, तो जब वापस इस लेवल पे आएगा, तो एक और बारी मार्केट ट्राई टू टर्न अराउंड। सिमिलरली पहले इस लेवल से एक अच्छी बाइंग आई थी, सो व्हेनेवर वापस इस लेवल पे आया, तो वापस से बायर्स वर वेरी इंटरेस्टेड कि उसको ऊपर लेके गए, सो दिस बिकम्स द सपोर्ट लेवल। एंड सिमिलरली ऐसे ही रेजिस्टेंस लेवल। एंड यहाँ पे लाइव आप देखो कि ये तो हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस वाज द रेजिस्टेंस, कि यहाँ से पहले टर्न अराउंड हुआ था, पहली बार आया, थोड़ा सा पहले इसने पॉज लिया, एंड व्हेन इट ब्रोक आउट, तो जब ब्रेकआउट के बाद जब वापस आया, सो द प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इट बिकम्स द न्यू सपोर्ट। तो जैसा कि हमने ये डिस्कस किया था, द प्रीवियस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ न्यू सपोर्ट, एंड सिमिलरली यहाँ से भी इसने ऐसे ही बाउंस करा, राइट? सो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स इन द मार्केट। सो इट्स प्रेटी यूजफुल। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे सम रियल लाइफ एग्जांपल्स आप अब बाकी भी देख सकते हो, कि जैसे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। लाइन ड्रॉ करना मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जिनको नहीं पता, आई थिंक मोस्टली लोगों को पता ही होगा। So, but just in case अगर आपको नहीं पता है, तो you can just come here, click on this trend line, and you can just drag and just draw here, okay? या फिर आप नॉर्मली एपिक पेन भी यूज कर सकते हो, कम्स इन वेरी फ्रेंडली, इजिली डिलीट हो जाता है यहाँ से क्लिक करके, ओके? और या फिर आपको अगर स्ट्रेट लाइन बनानी है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑल्ट एच आप क्लिक कर सकते हो, शॉर्टकट्स ऑल्ट वी से आप वर्टिकल लाइन बना सकते हो। रेक्टेंगल्स आप कुछ बनाने हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल बनाना है,
तो इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग। ओके, आप सीधा इस तरीके से स्ट्रेच करके एक रेक्टेंगल भी बना सकते हो। सब कुछ आपको डिलीट करना है तो नीचे जाके आप डिलीट पे क्लिक करके इट विल लास्ट रिमूव 2 ड्राइंग्स एंड 1 इंडिकेटर। मैं सब कुछ रिमूव कर दिया। ओके, नीचे जो थी वॉल्यूम थी, वॉल्यूम आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करके वॉल्यूम आप लेके आ सकते हो। वॉल्यूम मतलब हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा। इंडिकेटर्स मैं पर्सनली यूज करता नहीं, मैं थोड़ा प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हूँ। तो आई वुड रेकमेंड कि आप प्राइस एक्शन से ही ट्रेड करें, क्योंकि जो कुछ होता है चार्ट में दिख जाता है। इंडिकेटर शुरू में यूज करता था मैं 5-6 साल पहले, शुरुआत के लिए एक अच्छी चीज है, बट आई थिंक बाद में अगर आपको थोड़ा बड़ा पैसा डिप्लॉय करना है तो आप इंडिकेटर्स के भरोसे तो नहीं कर सकते। ओके, ये बस मेरा मानना है। ओके, तो बाकी लेट्स मूव फॉरवर्ड कि किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सम रियल लाइफ एग्जांपल वी हैव डिस्कस अशोक लेलैंड कि यहाँ पे किस तरह से रिवर्स हो रहा है, फिर वापस उस रेंज में बना रहे हैं। ओके, तो लेट्स कम ऑन टू ट्रेंड्स। So trends, what market says कि once a trend is formed, it will remain intact until it is broken, right? कि अगर कोई मार्केट जो है अब ट्रेंड में चल रही है, so it will continue to be an uptrend unless कोई रिवर्सल साइन इसके अंदर दिखता है। ओके, तो मैं ट्रेंड पर्टिकुलरली कैच करने का काफी ट्राई करता हूँ इंडियन मार्केट में। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ब्रेकआउट्स की तरफ है कि जब मार्केट में कोई ट्रेंड है, क्योंकि वहां पे सबसे इजी पैसा है। मान लीजिए आपको कोई ट्रेंड में आप बैठ गए, जैसे कि मान लीजिए राकेश झुंझुनवाला जी है, वो टाइटन के ट्रेंड में बैठ गए थे, तो बस उन्होंने कभी निकाला ही नहीं, क्योंकि ट्रेंड उनको लगा ही नहीं कि कभी बैंड हुआ। ओके, सो वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में बैठे थे। मैं जनरली थोड़ा मीडियम टर्म ट्रेंड में बैठता हूँ या कभी कभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड में। ओके, सो दैट इज माई ट्रेडिंग स्टाइल। सो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए ट्रेड कर रहे हो लाइक लेस देन 1 मंथ या ये, तो आप आवरली चार्ट्स एंड 4 आवरली चार्ट्स को आप देखकर ट्रेड कर सकते हो। मीडियम टर्म ट्रेंड ट्रेड कर लो आप वीकली या फिर डेली चार्ट्स देख सकते हो। सिमिलरली लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैच कर लो तो आप मंथली चार्ट देख सकते हो। सो इस तरीके से इट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर कि कितना पैसा आपके पास है, कितना आप लगाना चाहते हो, कितना ग्रो करना चाहते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, तो पर्सन टू पर्सन। तो मेरा थोड़ा सा लाइक यू कैन से कि 3-4 दिन से लेकर अप टू 1 मंथ है। मतलब इंट्राडे पहले मैं करता था, लेकिन अब फिर मैं वही कि अगर मैं इंट्राडे में ज्यादा देखता रहूंगा स्क्रीन को तो चश्मा लग जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि मेरे को चश्मा लगे। तो इसलिए आई हैव हायर्ड 2 पीपल, तो अब वही इंट्राडे ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन सम सेटअप्स जो मैंने बता रखा है उनको। तो इस तरीके से आप भी इस तरीके से कर सकते हो। बस मुझे चश्मा पसंद नहीं था, इसलिए बस मैंने वो करा था। ओके, सो लेट्स सी सम शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म ट्रेड्स कि किस तरीके से होता है। सो देयर आर सम कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। द फर्स्ट वन इज फॉलिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज पैटर्न क्या होता है? लेट्स से द प्राइस इज मूविंग अप, उसके बाद क्या होता है? कंसोलिडेशन रेंज में आ जाता है। ओके, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही अगर आप देखोगे, बस एक टिल्टेड सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ओके, आप इस तरीके से लाइन बना के उसको डिफाइन कर सकते हो। एंड व्हेनेवर इट ब्रेक्स आउट, पहले जैसे ऊपर गया लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया, नीचे आया तो वापस बाय करना शुरू कर दिया। तो इट इज फॉर्मिंग अ कंसोलिडेशन जोन, एंड जैसे ही वो एक रेंज के बाहर निकलता है तो यू जस्ट टेक द एंट्री, एंड स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे लो पे। एंड फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अमाउंट एक्स, अगर ये एक्स अमाउंट है तो आप 2x का यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। ओके, मैं इनके एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा, बड़े अच्छे से चार्ट वर्क करते हैं मार्केट में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से टारगेट आप ले सकते हो कि ये एक्चुअली काम क्यों करता है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सम रियल लाइफ एग्जांपल, ट्रेंड्स। ओके, फॉलिंग वेज पैटर्न। सिमिलरली देयर इज द राइजिंग वेज पैटर्न कि मार्केट ऊपर से पहले फॉल हो रही है। दीज आर कंटिन्यूएशन पैटर्न, मतलब कि पहले कंटिन्यूएशन जो थी बाइंग की तरफ थी, पहले लोग इंटरेस्टेड थे, आगे भी बाइंग की तरफ ही इंटरेस्टेड है, लेकिन बीच में क्या है, मार्केट ने थोड़ा पॉज लिया। ये पॉज लेना मार्केट का बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पॉज के बाद ही एक नया ट्रेंड कंटिन्यू होता है। जिन लोगों ने पहले, जिनका पहले पेट भर गया था, वो अपना प्रॉफिट अपना बुक कर रहे होते हैं, या फिर जिनको री एंट्री लेनी थी, मतलब जिन्होंने पहले यहाँ पे बाय किया था, कुछ लोगों ने सोचा कि यार ये तो ट्रेंड मिस हो गया, जब नीचे आएगा तो मैं तुरंत ही इसको नीचे नीचे बाय कर लूंगा, राइट। और कुछ लोगों ने जहाँ पे यहाँ पे बाय किया था वो सोचते हैं यार हो जाता, भाग गया, जब जो ऊपर आएगा ना मैं उसको सेल कर दूंगा। तो इस तरीके से ये एक रेंज में डिफाइन हो जाता है। एंड व्हेनेवर इट ब्रेक्स, जिस साइड भी वो ब्रेकआउट होगा हम ट्राई करेंगे उस साइड बैठ जाए। एंड जनरली अगर प्रीवियस ट्रेंड वाज ऑन द बाइंग साइड तो जनरली अपसाइड ही ब्रेकआउट करना चाहिए फॉर द टाइम बिंग। सिमिलरली राइजिंग वेज पैटर्न कि अगर पहले फॉलिंग की तरफ था तो वापस से ऊपर जाएगा, तो इट विल ट्राई एंड गो फॉर द प्रीवियस ट्रेंड ओनली, कंटिन्यूएशन पैटर्न जैसे था, गिर रहा था तो फिर यहीं पे आएगा। अगर इसको बाइंग की तरफ जाना है तो इट विल फॉर्म अ स्लिट साइडवेज, और फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, जनरली इस तरीके से होता है। हम और कोई एग्जांपल भी देख लेते हैं एक बार। सिमिलरली देयर इज बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न, बुलिश पेनेंट, बेरिश पेनेंट। तो ये चार्ट्स आप देख सकते हो, मतलब मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा फाइनेंस क्लब के साथ,
कि यू कैन जस्ट शेयर इट विद द पार्टिसिपेंट्स, सबकी ईमेल आईडीज पे या जिस तरीके से भी आप दो, तो इस तरीके से यू कैन गो फॉर इट। सो आप यहाँ पे देखोगे बेसिकली एवरीथिंग इज अबाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। सो कोई भी पैटर्न्स के नाम याद करना ज्यादा जरूरी नहीं है, मेन चीज है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि मार्केट पहले एक ट्रेंड में रहती है, फिर थोड़ा साइडवेज हो जाती है, फिर वापस से कहीं ना कहीं ट्रेंड पकड़ती है। मेरा काम क्या है, मेरा काम इस ट्रेंड को पकड़ना नहीं है, ना मेरा काम इसके अंदर बैठना है। मेरा काम है जब ये यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करे, मैं उस टाइम पे बैठा हूँ। ओके, सो दैट इज माई ट्रेडिंग स्टाइल, मतलब जो मैं बता रहा हूँ। ओके, जो मैं करता हूँ मैं बस वही बता सकता हूँ। जो मैं नहीं करता कि OI बेस्ड ट्रेडिंग करनी है या फिर कुछ और आपको इंडिकेटर वगैरह यूज करनी है, वो सब मेरे को नहीं पता। ओके, पता है मतलब मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो आपको खामखा मतलब आपके काम नहीं आएंगे बेसिकली। आई वांट टू से चार्ट पैटर्न्स आर मोर देन इनफ। आपके उसमें डेफिनेटली चार्ट पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक एंड ट्रेंड लाइन, इसके अलावा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आप जानोगे, घूम फिर के आप इन्हीं चीजों पे आ जाओगे। मतलब मैंने 1-2 साल वेस्ट करा, मैं नहीं चाहता कि आप भी इस पे वेस्ट करो, तो इट्स बेटर कि आप भी यही चीज करो, उसमें बनेगा पैसा। आपको बस क्या करना है, एक ट्रेंड देखना है, उसके बाद एक साइडवेज रेंज देखनी है, जिस साइड में ब्रेकआउट करे प्रेफरेबली अपसाइड, उसमें आपको बाय कर लेना है। ओके, हम रियल लाइफ एग्जांपल इसके अंदर देख लेते हैं। सिमिलरली ऐसे रिवर्सल पैटर्न्स भी होते हैं, बस नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम हेड एंड शोल्डर एक थोड़ा अच्छा जैसा भी बोला जाता है कि भाई शैम्पू नहीं होता, ये वो होता है। यहाँ पे आप देखोगे दीज आर द 2 शोल्डर, दिस इज द हेड, तो नाम दे दिया हेड एंड शोल्डर। तो इस तरीके से ये है। तो लेकिन आप देखोगे सिर्फ सपोर्ट लाइन ही तो ब्रेक हुआ है, ऊपर चाहे कुछ भी हुआ हो, एक सपोर्ट लेवल था, वो सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो वही आपने ऊपर छोटा स्टॉप लॉस देके 1:2 या 1:3 का टारगेट यहाँ पे आपने पकड़ लिया। तो इस तरीके से एवरीथिंग वर्क्स, एवरीथिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हो। ये वाली स्लाइड जो थोड़ी सी बोरिंग है, मैं कुछ एक नई स्लाइड बनाई थी इस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम द करंट स्लाइड पे। सो इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल्स, यहाँ पे आप देखोगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एंट्री शुड बी हार्ड, एग्जिट शुड बी इजी। ओके, आपको अगर हर जगह एंट्री दिख रही है मार्केट में, तो मतलब आप मार्केट में मजे ले रहे हो, आप पैसा नहीं कमा रहे। ओके, पैसा कमाने के लिए यू हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट, वेट फॉर द राइट ब्रेकआउट, वेट फॉर द राइट रिवर्सल। इंतजार करना बहुत मुश्किल चीज है। ओके, काफी लोगों को इंतजार होता नहीं, लेकिन इंतजार से ही पैसा बनेगा। एग्जिट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, एग्जिट करने में बस एक बटन दबाना है, प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है। एग्जिट शुड ऑलवेज बी इजी। लेकिन एंट्री अगर आपको इजी लग रही है कि कहीं पे भी मैं एंट्री ले लूँ, तो मार्केट आपको एग्जिट देगा ही नहीं। अगर एंट्री आपकी इजी है तो एग्जिट बहुत हार्ड होने वाली है, क्योंकि आपको लगेगा अरे यार अभी तो बाय करा था, अभी ऊपर आ ही नहीं रहा, 1 महीना आप उसी स्टॉक में फंसे रह गए। ओके, तो इस तरीके से नहीं फंसना है, एंट्री शुड बी हार्ड। ओके, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से लेवल्स हैं। जैसे ये अगर आप यहाँ पे एच लेवल पे स्टॉप लॉस दे दो, तो आप बच जाओगे। तो मेन चीज यही है गाइस, आपको मेन स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लेना। अगर आप सीख गए ना, तो मार्केट आपको इतना पैसा देगा, संभाल नहीं पाओगे आप। ठीक है, मार्केट के सामने स्टॉप लॉस लेना मतलब कि मार्केट के सामने एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैंने हार मान ली। राइट, तो ये बहुत जरूरी है। एंड देन इट रिटर्न्स टू द मीन। राइट, आप चीजें देखो काफी सारी, मतलब आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। जैसे वक्रांजे का ले लो या फिर पीसी ज्वेलर्स का ले लो, कि किस तरीके से चीजें चलती थी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट वैसा चार्ट है, मतलब जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। कैसे देखो चीजें बहुत सारी चलती रहती हैं। यस बैंक सॉरी, वक्रांजे मैं दिखा देता हूँ। हाँ, वक्रांगे लिमिटेड, तो देखो इसका चार्ट था, ये काफी टाइम से चल रहा था। ये देखो यहाँ पे क्या छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने स्मार्ट मनी एंटर्स, यहाँ पे मान लीजिए वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फिर वापस से मीनिया फेज, फिर सब लोग उसको भगाते गए। ऐसे टाइम पे कुछ न्यूज व्यूज आ जाती है, फिर वापस उसको पूरा नीचे गिरा देते हैं, एंड दिस इज रिटर्न टू द नॉर्मल। पहले भी यही था, आज भी यही है। ठीक है, यहाँ पे होप्स वगैरह दिए जाते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसे कर देंगे, और होता कुछ नहीं है। ठीक है, अब वो चीज है कि आप इस वाली जर्नी को कैप्चर करना चाहते हो या नीचे वाली जर्नी को, आपको वो डिफाइन करना है। आप बुलिश साइड पे ट्रेड करोगे या बेरिश साइड पे, लेकिन कुछ भी करो गाइस, लेकिन स्टॉप लॉस एक माइंड में लेके चलो, वरना अगर आप पकड़ने बैठ गए ना। देखो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने 5 लाख का ये बाय किया था। ठीक है, जब ये वापस यहाँ पे चल रहा था, समवेयर अराउंड 250 के लेवल्स पे चल रहा था, मेरे से वो पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा बेच दो, अभी भी टाइम है, कुछ ना कुछ गलत न्यूज है, ये है वो है। आज तक नहीं बेचा, उल्टा एवरेज और कर लिया। ठीक है, 70 पे खरीदा, 60 पे खरीदा, 50 पे खरीदा, आज तक भी वो पकड़ के ही बैठे हुए हैं। बात ये नहीं है कि लॉस हुआ, बात ये है कि ये जो टाइम वेस्ट हुआ ना, ये अगर आप स्टॉप लॉस ले लेते, मान लेते मार्केट के सामने कि भाई ठीक है, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये 5-6 साल बर्बाद तो नहीं जाते।
मेन क्या है उसमें आपको क्या है ना, इस वाले फेज में आप बाकी स्टॉक्स में भी पैसा नहीं लगा पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। आप सोचोगे यार मार्केट सिर्फ जुआ है, ये है वो है, ये चीज चलती रहेगी, जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ पे अगर आप निकाल लेते, फ्रेश माइंडसेट के साथ एंटर करते हैं मार्केट को, आप अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। ओके, कई बार क्या होता है हम लड़ने बैठ जाते हैं मार्केट से, नहीं मार्केट दुश्मन है, मैं उसको पेल पेल के उससे पैसे वसूलूंगा, नहीं वो नहीं करना। मार्केट के पास पैसा है, आप साथ साथ चलते रहो, थोड़ा थोड़ा उससे लेते रहो, तो ये थोड़ा उधार दे दो, थोड़ा उधार दे दो, थोड़ा ऐसे इस तरीके से, कि एक नदी बह रही है, नदी के अंदर आप बस आए, एक एक जग में पानी निकाल के बस ले जा रहे हो, ठीक है, उस तरीके से देखो, आप उसके साथ नहीं, और बहुत ज्यादा डुबकी मारोगे तो आप बह जाओगे उसके साथ ही, ठीक है, फिर कोई वापसी नहीं होने वाली वहां से। तो आपको मार्केट को अपना दोस्त बनाना है, ठीक है। सिमिलरली पीसी ज्वेलर्स का आप देख लो, ठीक है, इसी तरीके से ये था, पहले नीचे से इस तरीके से फर्स्ट सेल ऑफ आया, वापस से मीनिया फेज वैसे चला, ऊपर जाके फिर से नीचे चला गया। ओके, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली इसके अंदर सारी चीज लोग इन्वॉल्व थे या जो भी था, मैं बस ये कह रहा हूँ चार्ट इज वेरी सिमिलर, कि इस तरीके से मार्केट जनरली वर्क्स। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब कोई मतलब आई वोंट बी सरप्राइज। सिमिलरली मान लो स्काई गोल्ड में आपने लिया या फिर किसी और ने लिया, मान लो वहां पे स्टॉप लॉस एक लेके चलोगे ना गाइस आप, तो बहुत अच्छा रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा, और मार्केट के सामने आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि यार मार्केट ने मेरे से पैसा छीन लिया, ये है वो है। उस चीज में अगर आप लग जाओगे ना, तो फिर आप भी जैसे आपके चाचा मामा ताऊ वगैरह किसी होंगे, उन्होंने पैसा लूज करा होगा मार्केट में, तो आपको बताते होंगे कि यार देख स्टॉक मार्केट जो है, इसके पीछे मत भागो, ये है वो है। तो मार्केट गलत नहीं है गाइस, हम गलत होते हैं, ठीक है। तो आपको बस अपना सही देखना है कि किस तरीके से आप मार्केट की रिस्पेक्ट कर सकते हो, मार्केट डेफिनेटली आपको पैसा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इट वर्क्स, राइट। कैंडलस्टिक्स पे एक बार गाइस आ जाते हैं। कैंडलस्टिक मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से कि दीज आर द विक्स, अपर शैडो या लो शैडो भी बोल लो आप इसको, विक्स कह लो, एंड दिस इज द बॉडी। अगर ग्रीन कलर की क्लोजिंग है तो दैट मींस ओपनिंग इस प्राइस पे क्लोजिंग थी, ओके। दिस इज द हाई लेवल ऑफ द डे, दिस इज द लो लेवल ऑफ द डे। वो डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, डेली चार्ट पे देख रहे हो तो ये डेली कैंडल है, आवरली चार्ट पे देख रहे हो तो वन कैंडल रिप्रेजेंट्स 1 आवर, मिनट कैंडल पे देख रहे हो तो 1 मिनट जो है 1 कैंडल से रिप्रेजेंट होगा, ओके। सिमिलरली फॉर द रेड कैंडल। तो इस तरीके से देयर आर सम बुलिश पैटर्न्स, देयर आर सम बेयरिश पैटर्न्स। तो मेरा फेवरेट जो है दिस इज द हैमर पैटर्न। मार्केट अगर नीचे गिर रही है, मान लो कैंडलस्टिक्स, तो नीचे क्या होता है, मान लो एक हैमर, ये कैंडल जैसे बनती है, मार्केट का प्राइस खुला, प्राइस जो है नीचे तक गया, लेकिन बायर्स फिर से एक्टिव हो गए, उसको ऊपर तक लेके गए, हाई एंड पे क्लोज करा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम है, ये ओपनिंग प्राइस था, दिस वाज द लो प्राइस ऑफ द डे। सो दिस मींस इस हैमर कैंडल का क्या मतलब है, जहां पे मार्केट ने प्राइस खोला, उसके बाद सेल ऑफ आया, लेकिन सेल ऑफ को वापस से ही नेगेट करके बायर्स ने ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। सो दिस फॉर्म्स द हैमर कैंडल। सो जब नेक्स्ट कैंडल खुल के इसका हाई ब्रेक करती है, तो दैट मींस कि बियर्स हैव गिवन अप, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे इसके लो के साथ स्टॉप लॉस लेके। ये जो हैमर कैंडल थी, ये सेम मैंने इन्फोसिस में आपको दिखाई थी जब वो 10% गैप डाउन खुला था। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैं चीजें फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है, बस जहाँ पे ओपन हुआ वहां से नीचे आया, वहीं पे क्लोज होकर वही हाई बन गया। सो ये काइंड ऑफ हैमर, वेरिएशन ऑफ हैमर है एक तरीके से, आप इसको ये कह लो, राइट। तो इसमें सारी कैंडलस्टिक जाना जरूरी नहीं है, मेन एक दो ये हैमर हो गई या